1857 में जब अंग्रेज़ों ने मराठाओं से एक्चुअली जो सत्ता हासिल करी थी, बाकी बोलते हैं कि मुग़लों से किया है, बट मुग़ल जो है 1707 में औरंगज़ेब के बाद बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। उस समय मराठा जो थे वो कटक से औटक तक जो है वो थे, उनका राज्य था। तो उन्होंने एक्चुअली जो है वो 1802 पहले 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1802 में जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसके बाद से जो है उनका वर्चस्व हुआ था। तो एक्चुअली मराठाओं से जो है उन्होंने सत्ता हासिल करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कभी भी 5,000 ऑफिसर्स और 50,000 सोल्जर से ज़्यादा इंडिया में कभी नहीं रहे। इन 200-250 सालों में वो 45 ट्रिलियन डॉलर की जो है वेल्थ हमसे लूट के लेके गए। This is my latest book, Crossing Continents. It's published a month back, and it is about the European explorers and the Indian mysteries. Basically, those travelers who came around 400-500 years back to India, and what they observed and what they saw. So they were not the trained authors, nor they were sponsored by some by kings or the royals. So they wrote what they saw, basically. So it were totally untrained, and they wrote very authentic history of India at that time. Because as a historians, we were little weak in writing our history. So most of the history were written by either by Mughals or then later by the Britishers. And after independence, it is written by leftist historians like Romila Thapar, Irfan Habib. We all know that. Okay. So that's why when I was researching for my previous books, then I came across such travelers, what they wrote about India. So then I thought about writing this book about them, and I think many were relatively unknown. So this presentation, 50% is made by AI, artificial. Only my text is there. Most of all the formats and the pictures is by AI. So these are my babies for my hard work for the last 4 years. What I will be speaking about, the overview of the European travelers, and they came from every country. They came from Italy, they came from France, they came from British, they came from Germany, they came even from Russia also. So I have taken one of each country, and I have written about the women also, the European women who came to India, but they came later in 18th and 19th century. None came before 1857, or I think apart from one or two, none came, and all of them came after first war of independence. So I have written about their experiences and their observations. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या पाया, उनके क्या बाइसेस थे उनके, बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम यूरोप में उस समय जो सिचुएशन थी 15-16 सेंचुरी में, रिनाइंस जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑलरेडी ऑन द रन थी। वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो दे वर गेटिंग रिचर बाई डे। सो दे वर सर्टन कल्चरल सुपीरियरिटी। तो उन्होंने जो भी लेंस में देखा, थोड़े बहुत बाइसेस थे। तो अगर हमें उनकी हिस्ट्री पढ़नी है जो उन्होंने लिखा है, देन वी हैव टू डिस्काउंट दोज बाइसेस। उनको अलग नज़रअंदाज करके हमें जो लिखा है वो पढ़ना है हमें। So I will start from the quote by Mark Twain. Mark Twain, we all know, in the English textbooks we read his stories. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, तो बड़े फेमस ऑथर हैं ये, अमेरिका के, ये 19th सेंचुरी के ये। तो ये जब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट बोला जो कि ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, इसको मैं बाई वर्बेटिम बोलूँगा मैं इसको। सो व्हाट ही रोट, इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of traditions. Our most valuable and most instructive materials in the history are treasured up in India only. So जो वाक्य है ये अपने आप में एक भंडार है ज्ञान का। जो उन्होंने बोला वो किसी भी और ट्रैवलर ने नहीं बोला, किसी भी और फॉरेनर ने नहीं बोला। तो इसमें अपने आप में ही ये पूरा जो एक समंदर समाहित है ये। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंडोफाइल थे, इंडिया से बिल्कुल प्यार में जो है ग्रसित थे। उन्होंने बहुत सारी क्रिटिसाइज़ भी किया है, वो हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। सो जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए, जैसे कि मैंने बताया है कि लगभग हर कंट्री से आए वो। रशिया से आए, फ्रांस से आए, इटली से आए, इटली से बहुत सारे आए,
एक नहीं, दो नहीं, 4-5 आए इटली से, बेसिकली मार्को पोलो के कारण, जो 12th सेंचुरी में इंडिया आए थे। तो उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें इंडिया के बारे में बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, तो उससे वशीभूत होके वो सब लोग आए। तो कुछ लोग सिर्फ एडवेंचर के कारण आए कि उनको इंडिया देखना है, कुछ लोग आए उनको ट्रेडिंग करनी है इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे टेवर्नियर था वो, ये फ्रेंच था वो, और उसको डायमंड्स के बारे में पता था कि इंडिया में डायमंड्स मिलते हैं और बड़े अनूठे अद्भुत डायमंड मिलते हैं। और उस समय 16th सेंचुरी में वर्ल्ड में अगर कहीं डायमंड मिलते थे तो वो थे इंडिया, और वो भी गोलकुंडा में, जो जहाँ हैदराबाद और कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तो वहीं पे डायमंड मिलते थे वहाँ पे। तो उसको जो कृष्णा रिवर है वहाँ पे तो उसको डायमंड रिवर भी बोला जाता था उस समय, इतने डायमंड्स थे। तो वो ट्रेडिंग के लिए आया था। कुछ लोग जो हैं बाद में आए सिर्फ कल्चर देखने के लिए, जैसे एनी बेसेंट थी, फ्रीदा बेदी थी, और भी बहुत सारे लोग थे। वो सिर्फ जो है कल्चर से खिंचे हुए चले आए कि ये क्या ऑफर कर रहा है, क्या सिविलाइजेशन है, बिल्कुल अलग सिविलाइजेशन थी उस समय भी थी, आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज हम चेंज हो गए, हम भी अभी भी वैसे ही हैं। और कुछ लोग आए थे, उनको जो है वो मिशनरी के रूप में आए थे कि उनको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है, उनको बताना है कि आप कन्वर्ट हो जाओ। तो ये 3-4 लोग थे जिनके मोटिव ये थे ये, तो वो उनके बारे में मैंने लिखा है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्क ट्वेन के बारे में। तो जब मार्क ट्वेन 1896 में इंडिया आए थे, उन्होंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, जो कि उस समय 1890s में कि जो टाइप करे ह्यूमन स्पीच से, वो टाइप करे, उस टाइप का रिवॉल्यूशनरी एक स्टार्टअप था। बट वो चला नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये बैंकरप्ट हो गए थे ये। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उसकी बुक सेल्स के लिए वो इंडिया आए थे वो, कि उनको पता था कि इंडिया में बड़ा इंग्लिश का वो है रिवाज है। तो जो इंटेलेक्चुअल जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश बहुत पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि जो बड़े बड़े ऑथर हैं उनके संपर्क में रहें, वो उनके साथ जो है उनकी फ़ोटो खींचें, उनके इंटरव्यू हों। तो इसलिए वो यहाँ पे इंडिया आए थे वो। तो बड़ा लंबा उनका वर्ल्ड टूर था, करीब 3-4 महीने का। तो वो साउथ ईस्ट एशिया भी गए थे, श्रीलंका भी गए और इंडिया भी आए। तो इंडिया में वो करीब 2.5 महीने वो यहाँ पे रहे। तो उन्होंने लिखा कि इंडिया वॉज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलेक्चुअल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम्स। और उस समय लिखा कि 1890 में इंडिया स्टिल हैड द पोटेंशियल टू लीड द वर्ल्ड, बट ओनली इफ इंडिया इज वन इंडिया ओनली, वन इंडिया वन लैंग्वेज। जबकि उस समय उन्होंने बोला कि देयर वर एटलीस्ट 80 लैंग्वेजेस, 120-130 गवर्नमेंट्स। तो देयर वाज ए नो यूनिटी ऑफ पर्पस, दो नो यूनिटी ऑफ लैंग्वेज एंड नो यूनिटी ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा। तो सब कुछ बहुत ही डाइवर्स था ये। तो ये मैंने जो पहली किताब है मेरी स्विफ्ट हॉर्सेस, उसमें भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे एक्सेसिव डाइवर्सिटी होती है जिस कंट्री में भी, या तो वो कंट्री ही सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो कंट्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है वो, या फिर जो है उसकी कभी भी वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर हाउस नहीं बन पाता है। तो उसके मैंने उसमें बहुत सारी टेबल्स भी दी थी उसमें कि जो इंडिया है कि जो भी जितने भी बहुत डाइवर्स कंट्रीज़ हैं वो सब बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर हैं। हम आज भी जो है, इवन दो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाई जीडीपी, बट स्टिल अवर पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड इज द वन ऑफ द लोएस्ट। ठीक है, तो हम बहुत पुअर हैं अभी भी। तो इसका एक पुअर का कारण यही होता है कि हम बहुत डाइवर्स हैं। तो कोई एक सिंगल पर्पस नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो एक हमेशा रॉयट्स चल रहे हैं, एक सोशल जो है अनरेस्ट है हर जगह पे। तो गवर्नमेंट उसी में लगी रहती है उसमें। तो ये इटनरी थी है। ही स्पेंड 2.5 months इन 1896 एंड लकीली ही केम इन द विंटर्स। तो जो वो जब विंटर्स में आए तब भी उनको बड़ी गर्मी लग रही थी मार्क ट्वेन को कि हम किस गर्म देश में आ गए। तो उन्होंने बोला कि अमेरिका के जो समर्स हैं that are colder than the winters of India. He went to Calcutta also. He traveled in North India also. So can you guess which city is this? वाराणसी। तो वो सबसे जो गए थे उनके ट्रैवल में सबसे ज़्यादा सिटी में जो जिससे वो प्रभावित हुए वो थे बनारस। तो वहाँ पे वो देख के उसको हतप्रभ रह गए, अद्भुत शहर था वो। तो वो बोले कि ये जो है इतने सारे शिवलिंग है कि इट इज़ ए म्यूजियम ऑफ शिवलिंगम्स। और बोले कि अगर कोई देख ले तो इसको जो है बनारस का नाम लिंगमबर्ग होना चाहिए या आइडलविल होना चाहिए। जैसे वहाँ पे अमेरिकन सिटी में यही विल या बर्ग लगता है, तो उन्होंने बनारस का नाम भी यही रख दिया था। फिर उन्होंने देखा कि शव को प्रवाहित किया जा रहा है वहाँ घाट पे, और फिर वहीं पे स्नान भी कर रहे हैं, मल्टीपर्पज़ जो है उसका यूज़ है। तो उन्होंने जब तहकीकात करी तो लोगों ने बोला कि जो गंगा का वाटर है वो बहुत ही
हाँ बहुत ही प्योर है और इसमें जर्म्स नहीं होते हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। तब लोगों ने बताया कि ये सल्फ़र के जो है माउंटेन से हो के आ रहा है, हिमालयाज़ में जो है जहाँ घाटी है। तो बोले ये कैसे पता था एंशियंट टाइम्स में कि ये वहाँ से हो के आ रहा है, तो ज़रूर ये सिविलाइजेशन कोई कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही होगी। तो कोई भी ट्रैवलर आता है, या चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, तो उनके दिमाग में जो है वो एक जो है इंडिया आते ही या किसी भी और काफिर या पैगन कंट्री में जाते ही उनके अंदर का मिशनरी या मुल्ला जग जाता है। तो मार्क ट्वेन इतने पढ़े लिखे, इतने फेमस ऑथर थे, तब भी उनके मन में जो है पीछे एक मिशनरी जो है वो चल रहा था। तो उन्होंने बनारस में पूछा कि कितने लोग जो हैं, कितने मिशनरी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो किसी ने बोला कि सिर्फ 640 मिशनरी हैं। तो बोले 5 लाख की सिटी के लिए सिर्फ 640, तो कहीं ऐसा ना हो कि यही 640 कन्वर्ट हो जाएं। कलकत्ता गए वो, तो कलकत्ता में जो है 100-150 साल पहले एक ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था। तब उस समय अंग्रेज राज नहीं कर रहे थे, 1756 में। तो वहाँ पे जो नवाब था सिराजुद्दौला, तो उस समय जो है मुगल्स का डिक्लाइन हो चुका था। 1707 में औरंगजेब जो है वो जा चुका था। तो मुगल बिल्कुल स्टीप डिक्लाइन में थे। तो जितने भी ये छोटे छोटे लोग थे वो सब नवाब बन गए थे। तो लखनऊ के एक नवाब बन गए, बंगाल में बन गए, हैदराबाद में निज़ाम जो है बन गए। तो बंगाल में नवाब थे सिराजुद्दौला। तो ये उस समय सर तो उठाने लगे थे ब्रिटिश। तो किसी पे उन्होंने, जो मुगल की फैक्ट्रीज थी उस पर अटैक किया इन लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया। तो जहाँ पे ना टॉयलेट था और एक छोटी सी खिड़की थी, आप देख सकते हैं इस फोटो में, इलस्ट्रेशन में, जहाँ पे हवा आने का भी बहुत कम वो था। और जून का महीना था, तो कलकत्ता में जून में जो है इतना ह्यूमिड होता है। तो रात भर उनको बंद रखा। प्लस उनको यातना देने के लिए उनके दरवाजे के बाहर जो है वो पानी भी बहा रहे थे जो द्वारपाल थे। तो उस यातना में जो है 123 लोग जो हैं, ये कहा जाता है कि वो उनकी डेथ हो गई अगले दिन सुबह, मतलब 12 घंटे में ही। तो इस ट्रेजेडी को जो नाम दिया गया ब्लैक होल। जब ये पता लगा अंग्रेजों को, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था। तो उसने इस प्रिटेक्स्ट पे अटैक किया बंगाल में, और तब प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें उन्होंने उसको हराया, उसको सिराजुद्दौला को। फिर बाद में कहा जाता है कि ये जो फिगर थी 123 लोगों की जो मारे गए, ये बहुत एक्सैजरेटेड थी और ये जानबूझ के इन्वेड करने के लिए बंगाल को ये फिगर जो है वो बढ़ाई गई है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो यूनिवर्स में जो ब्लैक होल का जो इंसिडेंट है, जो ब्लैक होल जो पैटर्न है, कि उस जगह पे से कोई भी लाइट निकल नहीं पाती है। तो वो जो ब्लैक होल है वो इसी के नाम पे रखा गया, इसी ट्रेजेडी के नाम पे, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उस समय जब वो मार्क ट्वेन यहाँ पे गए, तो यहाँ पे कोई भी मेमोरियल नहीं था। छोटा मोटा मेमोरियल बनाया था अंग्रेजों ने, और वो जो है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुका था, बिल्कुल वहाँ पे सब जंगल वंगल हो गया था। तो वो बड़े दुखी हुए कि हमारे 123 लोग मारे गए और आप लोगों ने इतना ख़राब जो है वो मेमोरियल बना रखा है इसका। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है, अंग्रेजों ने कुछ ठीक ठाक किया उसको। फिर जब वो लखनऊ आए थे, तो लखनऊ में जो है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, तो हम लोग उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, वो लोग उसको म्यूटनी बोलते थे या विद्रोह बोलते थे। तो लखनऊ में 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसका जो मेन गढ़ थे वो 4-5 शहर थे, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ है, बलिया, हाँ सिपाही म्यूटनी। हम लोग उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं म्यूटनी, है ना। हाँ झांसी। तो ये जो अभी आज का यूपी है उसमें ये बड़ा फोकस था ये। तो लखनऊ में जब वो गए, तो वो लखनऊ रेजिडेंसी के बाहर जो है वो देखने गए। तो उस समय 1857 में जो है, जो ये विद्रोही थे या जो हमारे जो सैनिक थे, उन लोगों ने जो है वो उसका घेराव किया था, जहाँ पे 730 वाइट सोल्जर्स थे और 500 बच्चे और महिलाएं थीं। तो उनको पूरा घेराव करके रखा, और जो भी निकलने की कोशिश करता था तो उसको मार देते थे। तो 2 साल में 1857 से 1859 के बीच में 2300-2400 लोगों को करीब मारा, 400 गोरों को। तब जब नहीं उनसे संभाल रहा था, तो एक जेम्स आउटराम बड़े कॉम्पिटेंट कमांडर थे उनके, तो उसको, वो पर्शिया में पोस्टेड थे, तो उनको बुलाया गया उनको कि भाई आप यहाँ पे आइए, लखनऊ में आइए, और उस अपराइजिंग जो है, जो इंडिपेंडेंस का जो वॉर चल रहा है, उसको दबाइए उसको। तो वो आके सक्सेसफुल भी रहे। तो उसके रिटेलिएशन में जो है अगले 20-25 साल में या तो डायरेक्टली मार दिया गया, या फिर फेमिन्स और जो डिसीजेस का आउटब्रेक होता था, जैसे स्पेशली कॉलरा का, प्लेग का, तो वो उसमें जो है अगले 10-20 साल में 10 लाख इंडियंस मारे गए।
और फिर दिखाने के लिए कि वो लोग वो कितने बहादुर हैं ब्रिटिशर्स। तो ये एक पेंटिंग बनवाई गई। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि एक ब्रिटिश महिला है ये। तो ये 4 जो हैं वो इंडियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने अटैक किया हुआ है लखनऊ रेजिडेंसी में। तो कैसे दबंगी से जो है वो उसको मार रही है वो, और ये लोग जो हैं वो मरे पड़े हुए हैं ये। तो ये जस्ट नैरेटिव सेट करने के लिए था कि हम जो हमारी एक महिला भी जो है तुम 4 के बराबर है या 4 को मार सकती है। तो उसका पोस्टर देखिए वो किस जो है डायनेमिज्म दिख रही है उसके पोस्टर में। तो ये सब नैरेटिव होते थे जिससे जो है हम लोगों को कंट्रोल किया गया। जब वो आगरा गए तो आगरा देखते ही जो है वो बिल्कुल सरप्राइज रह गए कि ऐसी सुंदर इमारत भी कोई बन सकती है, ये हम लोगों के मनुष्य जाति के बस में है ये। तो वो उन्होंने लिखा कि मैंने उसको दिन में देखा, उसको रात में देखा, सूर्योदय के टाइम पे देखा, सूर्यास्त के टाइम पे देखा, सूरज की किरणें जब 45 डिग्री पे थी तब देखा, जब 30 डिग्री पे थी तब देखा। मैंने उसको पास से देखा, इस एंगल से देखा, उस एंगल से देखा, और देखते रहे उसको कई दिन तक जो है वो इसको निहारते रहे वो। और उन्होंने लिखा कि ये जो ताजमहल है ये भी जो है एक कोई अनोखी सिविलाइजेशन ही बना सकती है। इसमें एक केस हुआ था यहाँ पे कि जबलपुर के पास में जो अभी मध्य प्रदेश में है, बहुत घने जंगल थे, अभी आजकल भी हैं मध्य प्रदेश में जंगल, जो कान्हा रिजर्व है। और वहाँ पे तो वहाँ पे 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था जो जिनको भेड़िए पाल रहे थे। तो उसको जॉन मूर ने रेस्क्यू किया था जो एक लेफ्टिनेंट थे, और एक स्लीमन करके एक सोल्जर थे वहाँ पे। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जब रुडयार्ड किपलिंग को पता लगा कि ये ऐसे बच्चे जो हैं वो जिनको भेड़ियों ने पाला था, वुल्फ्स ने पाला था, तो उस पर जो है उन्होंने एक किताब लिखी, जंगल बुक, जिसमें मौगली का करेक्टर उसी बच्चे पे बेस्ड है। तो स्पेशल बात ये है इसमें कि जो है ये भी जो मार्क ट्वेन को जब पता लगा, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है इसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। और ये बच्चे जब रेस्क्यू किया गया तो उसके कुछ सालों में ही वो उनकी 6 की डेथ हो गई उसकी। वो जंगल में ही रहने के आदी थे, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो है वो रह नहीं पाए वो। जितने भी ट्रैवलर्स थे उनका 3 जो है वो फेवरेट टॉपिक थे इंडिया में आके, आज भी हैं। एक तो कास्ट सिस्टम, दूसरा ठगी, और तीसरा सती। तो ये तीनों के बारे में बिल्कुल उसको बढ़ा चढ़ा के लिखते थे कि ये क्या इंडिया जो है इतना जो है बर्बर कंट्री है, बारबेरिक है, सैवेज है। तो ठगी में क्या होता था, ये 1837 में विलियम मेंटेक ने इसको जो है उसको ख़त्म कर दिया था। ये शुरू भी ठगी जो है वो मेनली अंग्रेज़ों के कारण ही हुई थी। जब अंग्रेज ने जो है उनकी जो आर्मी शुरू हो गई थी 16वीं सेंचुरी में, और मुगल्स का जब डिक्लाइन शुरू हो गया था, तब जो सोल्जर्स जो थे उनको सैलरी दे नहीं पा रहे थे मुगल्स, तो ये सब जो है ये अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अभी अनएम्प्लॉयड हो गए तो क्या करें, तो जो ये गैंग होते थे हाईवेज पे, तो वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उनको ठग बोलते थे। तो उन गैंग में 16 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक होते थे। तो ये ठग क्या करते थे, जो हाईवे पे जा रहे होते थे तो उनको दोस्ती करते थे पहले 4-5 दिन तक, खिलाते पिलाते थे, और फिर उसके बाद जो है दोस्ती करके उनको गला घोंट के मारते थे। अपने पास उनका एक सिल्क स्कार्फ रहता था, उससे मारते थे। तो एक सेट उनका एक प्रोसेस था कि दोस्ती करेंगे, पहले देख के कि ये रिच है, इसके पास बहुत ज़्यादा सामान है, उसके बाद उसको घोंट के, उसको गला घोंट के उसको मारते थे और उसका सामान चुरा के भाग जाते थे। तो 1800 से के शुरू में 2-3 दशकों में करीब 40,000 लोग मारे गए थे हाईवेज पे। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा कि ठग जो हैं ये किसी भी सिविलाइजेशन में होना नहीं चाहिए, ये जो यहाँ पे हुआ है ये। बट ये वो भूल गए कि जो इंग्लैंड और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी हाईवे मैन करके एक वहाँ पे भी वो ठग का काउंटर पार्ट थे। वहाँ पे भी ऐसी होता था, जो हाईवे पे जो लोग जा रहे हैं उनको लूट के, उनको मार के भाग जाते थे। तो अपना जो है नैरेटिव जो है वो उन्होंने कभी बात नहीं करी, और हमारे उसको बड़ा एक्सैजरेट करके उनको पोर्ट्रे किया गया। यही मार्क ट्वेन ने भी किया। तो जब 2.5 महीने बिताने के बाद उनकी बड़ी अच्छी बुक सेल्स हुई यहाँ पे उनकी, और उन्होंने पूरा इंडिया देखा, तो उन्होंने बोला कि ये लैंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है, लैंड ऑफ सटलिटी, सुपरस्टिशन। एक तरफ बहुत रिच लोग हैं, एक तरफ बहुत पुअर लोग हैं, एक तरफ ठग हैं, एक तरफ साधु संत हैं। तो हर तरीके का है, और इस कंट्री को समझ पाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। शायद ये हर ट्रैवलर बोलता है इंडिया के बारे में। हाँ, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और शायद ये इस पिक्चर में आपको दिख भी सकता है, ये भी AI जनरेटेड ही है ये। तो ये मार्क ट्वेन के बारे में था। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी बड़े कलरफुल पर्सनालिटी थे, टैवर्नियर।
ये फ्रेंच थे ये, और ये 1630s में ये इंडिया आए थे ये। तो इनके पिताजी जो थे टेवर्नियर के, ये थे मैप बनाते थे, मैप मेकर थे, कार्टोग्राफर बोलते हैं एग्जैक्ट इंग्लिश में। तो बनाते थे। तो इनकी एक शॉप थी पेरिस में। तो बहुत जितने भी एक्सप्लोरर्स थे, जो फ्रेंच एक्सप्लोरर्स थे, वो इनके यहाँ से मैप खरीदने आते थे। तो जब खरीदने आते थे तो बेशक बातें होती ही होंगी, तो वो बताते थे एक्सप्लोरर्स की, हम यहाँ गए, वहाँ गए, हमने ये देखा, स्टोरीज़ बताते थे। तो इंडिया के बारे में भी बहुत बताते थे कि डायमंड्स जो हैं इंडिया में बड़े अच्छे वहाँ पे मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड्स भी हैं, अद्भुत डायमंड्स हैं वहाँ पे। तब जब पिताजी शाम को डिनर टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, तो वो अपने बच्चों को बताते थे कि इंडिया इतना बढ़िया कंट्री है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तभी से टेवर्नियर के मन में एक ये ख्याल आ गया कि मुझे जो है इंडिया जाना है। वैसे भी इसको घूमने फिरने का शौक़ था, तो 16 साल की उम्र तक में ही वो यूरोप पूरा घूम चुका था। बट बचपन जो है फिर भी इनका बड़ा प्लेजेंट नहीं था। उस समय क्रूसेड्स चलते थे यूरोप में 16-17 सेंचुरी में। तो क्रूसेड्स में क्या होता था, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में बहुत वायलेंट लड़ाइयाँ होती थी, वॉर होते थे, एक दूसरे के घर में घुस घुस के मारते थे। तो ये लोग जो कास्ट सिस्टम के बारे में बोलते हैं कि हमारा कास्ट सिस्टम बड़ा बहुत असभ्य है और हम लोग डिवाइडेड हैं, तो ये भी उनका कास्ट सिस्टम ही है एक्चुअली एक तरीके का। तो कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट से लड़ रहे हैं, प्रोटेस्टेंट एडवेंटिस्ट से लड़ रहे हैं, और जेसुइट से लड़ रहे हैं, और फिर बाकी लोग सीरियन क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के 20-25 सेक्ट हैं, और सब आपस में बड़ा लड़ते थे, एक दूसरे को जान से मार देते थे। और ये अभी भी यही है। और मुस्लिम में भी है, शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोरा, तो 50 हैं ये, लेकिन बदनाम जो हैं सिर्फ हम लोग हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन है कि कैसे उनमें लड़ाई हो रही है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। और करीब 1562 से 1598, करीब 30 साल में 30 लाख लोग मारे गए इस क्रूसेड्स में। खैर ये जब ख़त्म हुआ तो क्रूसेड उस समय, तो ये वापस आए पेरिस में, और उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे जो है इंडिया जाना है। तब वो इंडिया आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार। और पहली बार में उनको बड़े अच्छे अच्छे डायमंड मिले, तो इसलिए उनको 6 बार आए वो। उन 6 बार में उन्होंने 20,000 मील का सफ़र किया, घोड़े पे, पैदल, बैलगाड़ी, पालकी, तो जो उनको मिलता था उसमें वो सफ़र करते थे। तो जब वो आए तो सूरत बड़ा प्रोमिनेंट पोर्ट था उस समय, मुगल पोर्ट था। तो बॉम्बे उस समय पोर्ट नहीं था, मेन पोर्ट जो था वो सूरत था। तो सूरत में आते ही, जैसे भी आप कहीं जाएं किसी टूरिस्ट प्लेस पे, तो आपको बाहर निकलते रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में आप पूछते हैं ना लोग कि किस होटल में जाना है, टाउट्स जो हैं पीछे पड़ जाते हैं। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ, टेवर्नियर के साथ। तो इसी तरीके का चारों तरफ घेर लिया, और प्लस गोरे भी थे, तो गोरों को देख के जो है कुछ हो जाता था हम लोगों को। तो वो ऐसे ही कुछ हुआ उनके साथ। खैर ये बड़ी मुश्किल से निकले, और सूरत में उस समय ईस्ट इंडिया का एक जो है ट्रेडिंग पोस्ट था वहाँ पे, तो उससे एकोमोडेशन भी था। तो उन्होंने बोला कि मैं फ्रांस से आया हूँ और मुझे शरण दो, और वो वहाँ पे रुक गए। तो उनके लिए जो है ये जो जितने भी ट्रैवलर्स होते थे, उनको पता था ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, शायद इसीलिए वो इतना दूर आ भी पाए, 7 समंदर पार। तो ये अपने साथ, उनको पता था कि गिफ्ट से जो है वो आदमी का दिल पिघल जाता है, चाहे वो कितना भी रिच क्यों ना हो। अंबानी भी चाहे होंगे, और उनको आप छोटा सा गिफ्ट दे देंगे तो वो बड़े खुश होंगे। तो वो अपने पास जो था वो फ्रेंच वाइन्स लेके आया था। प्लस उस समय फ्रेंच वाइन से ज़्यादा पर्शिया में शिराज वाइन्स मिलती थी उस समय, आज से 200-300 साल पहले। बड़ी फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी। बेस्ट जो वाइन अगर कहीं मानी जाती थी तो पर्शियन वाइन मानी जाती थी। ब्रांड ना शिराज, SHIRAJ। तो वो शिराज वाइन्स भी लेके आया था। तो वो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर जो था उसको दे दिया उसको। तो वो देखते ही, बोतल देखते ही वो खुश हो गया। तो ये उनका इटनरी था। तो पेरिस से चले, पेरिस से ब्लैक सी पार करते हुए पर्शिया आए, और पर्शिया से पार करते हुए फिर इंडिया पे आ गए। तो इन्होंने जो है वो उससे बड़ी दोस्ती हो गई। तो उसने जो है वो अपने बहुत सारे आर्म गार्ड्स दिए उसको, सिक्योरिटी दी उसको, और सर्वेंट्स दिए। एक वाइन के बदले में 30 आर्म गार्ड मिले और 10 सर्वेंट मिले उसको, टेवर्नियर को। और उन्होंने बताया, बड़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी दी। डायमंड का मार्केट एक्चुअली उस समय आगरा में था, जो कि मुगल कैपिटल थी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव आपको डायमंड्स मिलेंगे, आप सोर्स पे जाओ जहाँ पे माइंस हैं। वो माइंस जो हैं वो गोलकुंडा में हैं, और मैं आपको ये सर्वेंट हैं और ये आप घोड़े हैं, आप इनको लेके जाओ और उसमें वहाँ पे डायमंड लेके आओ। उस समय एक और भी चीज़ थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उस समय, 1630 की बात है ये, तो 20-25 साल ही हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आए हुए।
तब जो है उन लोगों को कोई भी चीज़ें जो हैं वो ले जाना अलाउड नहीं था। सामान जो है यहाँ से आप ले नहीं जा सकते इंग्लैंड वापस, जब आप घर जा रहे हो। तो उनका टेन्योर होता था 5-10 साल का, तो वो जो है वो ले नहीं जा सकते थे। तो उनको क्या करते थे, अभी वो साइड बिजनेस भी करते थे, सैलरी बहुत ज़्यादा थी नहीं उनकी उस समय। उस समय इंडिया की सैलरी जो पर कैपिटा इनकम थी वो ब्रिटेन से 4 गुना थी इंडिया की पर कैपिटा इनकम। जब वो छोड़ के गए तो उनकी पर कैपिटा इनकम 4 गुना थी, मतलब 200-250 सालों में 16 गुना जो है हम गरीब हो गए। तो वो लोग उस समय ले नहीं जा सकते थे कोई सामान। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या था कि डायमंड में जो अपने जो भी पैसे कमा रहे हैं साइड बिजनेस से, ऊपर की कमाई नीचे की कमाई, उसे 16 जो उसे डायमंड में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि डायमंड जो है छुपा के लेना बड़ा आसान काम था। छोटा सा डायमंड होता है, वो मिलियंस में आता था या थाउजेंड्स में उस समय आता था। आप जूते में छुपा लो, शर्ट के पॉकेट में छुपा लो, या कहीं पे भी छुपा लो। तो टैवर्नियर उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये बंदा हमारे काम कर सकता है, कि जो है वो हम उसको बोलेंगे कि ये डायमंड जो है हमें खरीद लेंगे हम उसको पैसे देके, और फिर हम डायमंड जो है वो जूते में छुपा के ले जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि टैवर्नियर ही ले जाएगा पेरिस, और पेरिस से वो लंदन भिजवा देगा। वो कोई जा रहा होगा वहाँ पे एज ए कोरियर, ये जो है तो टैवर्नियर का जॉब भी हो गया था। तो टैवर्नियर को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसको तो कट हमेशा मिल ही रहा था किसी भी केस में। तो ये भाई साहब जो हैं ये पहुंच गए करनूल आंध्र प्रदेश में, जो हब था उस समय डायमंड माइंस का। तो उसने 2-3 रूल बना रखे थे कि कभी भी किसी भी डायमंड का देखते ही उतावलापन दिखाना नहीं है, बहुत जिज्ञासा नहीं दिखानी है। एक पोकर फेस जो अभी भी आजकल यूरोपियन रखते हैं, बिल्कुल फ्लैट फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इसमें इमोशन नहीं। तो अगर अच्छा डायमंड दिख रहा है तब भी दिखाना नहीं है कि अच्छा है, बड़ा अच्छा डायमंड है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाए, है ना, जैसा हम लोग सब लोग करते हैं टूरिस्ट प्लेस पर जब जाते हैं तो। और कभी भी उसको जब बार्गेनिंग करें तो उसको बहुत कम प्राइस भी ऑफर नहीं करना है कि वो भागी जाए, वो कि हम मुझे नहीं भेजना, ये तो टाइम जो है ख़राब कर रहे हैं हमारा। तो इन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो सेट करके रखा हुआ था रूल। तो इस वजह से जो जब बार 6 बार गए तो 6 बार जो है इनके जो सेलर्स थे तो वो खुद ही आ जाते थे उनको बेचने के लिए, क्योंकि उनको पता था, एक ट्रस्ट भी हो चुका था कि ये अच्छे पैसे हमें देगा ये। तो ये गोलकुंडा माइन का इलस्ट्रेशन है ये कि तो ये देखिए इसमें देवी की एक मूर्ति लगी हुई है बाहर में, तो उसका अभिनंदन करके ही ये लोग नीचे जाते थे। और नीचे पानी भरा होता था कृष्णा रिवर का उसमें, या ग्राउंड वाटर, तो उसमें से वो डायमंड्स निकालते थे। तो उन्होंने टैवर्नियर ने बताया कि 60,000 लोग 1630 में 60,000 लोग वहाँ पे काम करते थे उन माइंस में। 10-12 माइन है थी वहाँ पे उस समय, तो 10-12 में 60,000 लोग काम करते थे। और सब पे जो हैदराबाद के निज़ाम के अंडर में था वो सारी माइंस। तो सब में जो भी डायमंड निकलेगा उसको उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो निज़ाम को ऑफर करना पड़ेगा। और उस जगह पे 40 से लेके 900 कैरेट तक के डायमंड जो हैं मिलते थे। तो वहाँ पे कोहिनूर मिला, वहाँ पे होप डायमंड मिला, ग्रेट डायमंड टेबल मिली वहाँ पे उनको, एक ग्रेट मुगल मिला, और बहुत सारे जो डायमंड्स थे वो इनको जो है वहाँ से मिले। और 3-4 डायमंड तो टैवर्नियर ने ही खरीदे उसमें, स्पेशली एक टैवर्नियर ब्लू करके और दूसरा ग्रेट डायमंड टेबल, ये दो के जो है इसने खरीदे थे टैवर्नियर ने। तो जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो इन्हीं डायमंड्स के बारे में है, कि इतने हमने डायमंड्स हमारे प्रोड्यूस हुए, वो सब के सब आज बाहर हैं। एक भी इस समय इंडिया में हमारा डायमंड जो 100 कैरेट के ऊपर है वो नहीं है। तो एक ग्रेट डायमंड टेबल था, ये पिंक कलर का था, प्योर पिंक जो था, और बिल्कुल फ्लैट था, तो इसीलिए इसको टेबल बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, ये जो आप टेबल पर रख देंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा इसमें। तो ये वही कोलूर माइन से निकाला गया गोलकुंडा की 1642 में टैवर्नियर ने इसको परचेज़ किया था इसको। और उसके बाद उसने शाहजहाँ के जब दरबार में ये गया आगरा में ये, तो वहाँ पे उनको सेल कर दिया उसको। फिर 100 साल बाद जो है वो शाहजहाँ के बाद से औरंगजेब के बाद से मोहम्मद शाह के पास गया ये। तो मोहम्मद शाह जो है वो उसका निक नेम था रंगीला, क्योंकि वो वाकई में रंगीला करैक्टर का था। तो उसके बहुत सारी जो हैं वो दासियाँ थीं उसकी, और वो जो हिंदू त्योहारों का उसको बड़ा शौक़ था, होली का और दिवाली का उसको। तो मतलब एक बड़ा सेकुलर मुस्लिम था, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं था राजपाट से। उसको बस यही सब था कि मैं दिन भर जो है इसी भोग विलासिता में डूबा रहूँ मैं ये। तो जब नादिर शाह ने अटैक किया 1756 में, आई थिंक 1764 में, तब वो लूट के ले गया, तख्ते ताउस लूट के ले गया, कोहिनूर लेके चला गया, या जितनी भी जो कॉस्टली चीज़ें थीं मुगल्स की वो सब नादिर शाह लूट के तेहरान लेके चला गया। वहाँ पे उसके वंशज से फ़तेह अली शाह उसके पास गया,
और फिर ये 100-200 सालों तक ये गायब हो गया। कुछ ट्रेस नहीं है कि वो उन 200 साल में ये ग्रेट डायमंड टेबल जो था ये कहाँ पे है ये। फिर 1950s के आसपास जो ईरान के शाह थे, रेजा शाह, तो उनके जो है वो हेड में जो है वो लगा हुआ देखा गया। तो जब उनकी तीसरी शादी हुई फरहा से, तब उन्होंने उसके एक मुकुट में जो है लगा के दिया। तो जब साइमल्टेनियसली शादी में लोगों ने देखा कि इनकी में भी ग्रेट डायमंड टेबल लगा हुआ है, उसके में भी लगा हुआ है, तो ये रिप्लिकेट कैसे हो गया। तब जब रिसर्च हुई तो पाया है कि जो ये इस डायमंड के भी 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने, क्योंकि फ्लैट था तो सीधे जो है दो, एक जो उन्होंने अपने मुकुट में रखवा लिया और एक जो है इनकी जो नई रानी थी उसके उसमें लगवा दिया। ये 50-50 कर दिया इन्होंने। तो उस समय जब शाहजहां के पास गया था टेवर्नियर, तो उसने देखा कि जो इतना वैभव था, जितना ऑपुलेंस था शाहजहां के दरबार में, और पूरे दुनिया भर के जितनी भी अद्भुत वस्तुएं होती हैं, जितनी भी प्राइसी चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ होती हैं, जो कलेक्ट कर दी जा सकती हैं, जिसको कलेक्टिबल्स बोलते हैं दुनिया भर की, तो वो सब जो है शाहजहां के दरबार में था। इवन साउथ अमेरिका की भी चीज़ें जो थी, ब्राज़ील की, अर्जेंटीना की, वो सब भी इसके पास में थी। वो कैसे थी कि जो पोर्तुगीज़ की कॉलोनी थी ब्राज़ील, जब पोर्तुगीज़ आते थे गोवा, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे शाहजहां के लिए। तो पहले गोवा आते थे, गोवा से फिर आगरा पहुंचते थे। तो इसने सब शाहजहां ने कलेक्ट कर रखा था। फिर इकोनॉमिस्ट आए थे एंगस मेडिसन, उन्होंने बोला कि शाहजहां की जो वेल्थ थी वो 23% थी, वर्ल्ड की 23%, अकेले पूरी धन संपत्ति का विश्व की चौथाई इनके पास था। और जब टेवर्नियर आया था यहाँ पे तो हमारी जीडीपी उससे 10 गुना थी फ्रांस से। हमारी 288 करोड़ थी और फ्रांस की महज 28 करोड़। शाहजहां का पीकॉक थ्रोन ही जो था, तख्ते ताऊस जिसको बोलते हैं, वही सिर्फ 550 करोड़ का था। ये टेवर्नियर का इलस्ट्रेशन है कि वो जो मार्केट में गया हुआ माइंस के पास में, तो कैसे उसको वो सेल कर रहे हैं। जो नेटिव जो इंडियंस हैं ये, उनको ब्लैक दिखाया गया है, और ये जो है ये टेवर्नियर उसको परचेज कर रहा है। आप उसकी शक्ल से देख सकते हैं कि वो बड़ा डिसइंटरेस्टेड दिख रहा है वो, कि हाँ ठीक है यार डायमंड है ये। तो उसको जब छठी जब यात्रा पे यहाँ पे आया था, तब उसको जो है एक ब्लू कलर का डायमंड एक ने सेल किया उसको। तो उसको देखते ही उसकी समझ में आ गया कि वो उतने प्योरिटी थी, वो डायमंड जो है उस समय लश्कारे मार रहा था। तभी उसको लग गया कि मेरी अगले 7 पीढ़ियों की जो 7 पीढ़ियाँ जो है उनको अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्योर डायमंड था वो। तो उसके जो है वो 116 कैरेट का था उस समय, ट्रायंगल शेप का, और उन्होंने तुरंत उसको ख़रीद लिया। खरीदने के बाद जो है वो बड़ी सारी र्यूमर्स फैलने लगी कि ये जो है ये वारंगल में, वहीं आंध्र प्रदेश में ही एक टेम्पल में ये सीता जी के मुकुट में लगा हुआ था। खैर वो किसी एक अंग्रेज़ ने जो है वो मुकुट चोरी किया, वहाँ से चोरी करके वो डायमंड निकाल लिया और टेवर्नियर को बेच दिया। वो फिर उसका नाम जो है वो टेवर्नियर ब्लू पड़ गया, टेवर्नियर के नाम पे। तो वो पहुँच गया वहाँ पे फ्रांस, पेरिस में, और वहाँ पे उसने लुई फोर्थ को जो है वो सेल कर दिया। लुई फोर्थ थे तो क्रिश्चियन, लेकिन अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे कि सोलर डायनेस्टी के वो वंशज हैं। तो क्रिश्चियनिटी में अलाउड नहीं होता है, बट वो अपने आप को मानते थे। तो उनका क्या था कि उनका जो है जो ऑप्टिकल चीज़ें होती थी, झूमर हो गए और इस तरीके की डायमंड्स हो गए या कोई लेंसेज हो गए, इस तरीके कलेक्ट करने का उनको बड़ा शौक था जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो उन्होंने पूरे अपने दरबार में जो है इस तरीके की चीज़ें स्पेशली जमा कर रखी थी इन्होंने। तो उन्होंने ये परचेज कर लिया। फिर इन्हीं के जो पोता था लुई द 16th, तो उसी की वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, जिसने बोला था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे कि अगर आपको, जब भुखमरी हुई थी वहाँ पे, कि अगर आप ब्रेड नहीं खा सकते तो आप केक क्यों नहीं खाते आप। तो ये जो टेवर्नियर ब्लू डायमंड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले टेवर्नियर ब्लू था नाम उसका, फिर बाद में फ्रेंच ब्लू बन गया, और उसके बाद जो है वो होप डायमंड हो गया। तो टेवर्नियर ने उसको 1653 में 1.5 लाख रुपए का खरीदा था, जिसकी कीमत आज 2100 करोड़ रुपए है। आज 1.5 लाख का जो है 400 साल में लगभग 2100 करोड़ पहुंच गया है। 113 कैरेट का था, और अभी जबकि जो है 113 से वो 46 कैरेट ही रह गया है। तो उन्होंने 3-4 टुकड़े कर दिए फ्रेंच लोगों ने, और उसको डिवाइड करके जो मेन डायमंड था वो अपने पास रख लिया। बाद में उसने कई सारी चीज़ें, कई सारे जो हैं वो हाथों में से वो निकला, और अभी वो यूएस में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में ये रखा हुआ है। तो जैसा कि इन डायमंड्स के साथ हुआ है, कोहिनूर के साथ भी था, होप के साथ भी था, ये शापित माने गए ये डायमंड,
क्योंकि ये चोरी करके लेके गए हमारे देवी देवताओं के मुकुट में लगे हुए थे, किसी के आंख में लगा हुआ था, किसी के कहीं पे लगा हुआ था मुकुट में। तो जब वहाँ से निकाला गया तो वो शापित हो गए। तो ये बोला था कि 10 लोग जो हैं, जो 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 जिनके पास में था वो मारे गए, बाकियों की जो है बड़ी दर्दनाक उनका जीवन रहा। किसी की मैरिज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, कोई बैंकरप्ट हो गया, कोई पागल हो गया। तो इस तरीके से वो कर्स आज भी लगा हुआ है कोहिनूर के साथ भी और होप के साथ भी, इसीलिए कोई उसको पहनता नहीं है। अभी जो लास्ट ईयर जो है वो चार्ल्स का जब कोरोनेशन हुआ था, जब वो इंग्लैंड के राजा बने, तो उन्होंने भी तब भी पहना नहीं, जबकि उनके मुकुट में लगा हुआ है वो। अपनी थर्ड यात्रा में टैवर्नियर जो है वो गोवा भी गया हुआ था, तो क्योंकि उसको बताया गया कि गोवा में भी कुछ डायमंड की खानें हैं, तो एक आध छोटी मोटी खान थी वहाँ पे, तो वो गोवा गया। तो गोवा में देखा वहाँ पे इंक्विजिशन चल रहा था। तो अभी आजकल ये पिछले 5-6 सालों से इंक्विजिशन वर्ड बड़ा फेमस हो गया है, जब हमको पता लगना शुरू हुआ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो इंक्विजिशन में क्या होता था, जो ये कैथोलिक्स होते थे ये नॉन कैथोलिक्स को मार देते थे, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। कैथोलिक्स को छोड़ के जो भी है उसको मार देंगे उसको। इवन गोवा में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उनके भी घर में घुस के वो पहले चेक करते थे किसी देवी देवता की मूर्ति तो नहीं है। अगर मूर्ति है तो उसको बड़ी यातनाएं दे के उनको मारा जाता था, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको। तो इसका जेनेसिस क्या है, इसका जेनेसिस इसकी बाइबल की एक वर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम एन अनहोली रेस विकेड एंड क्राफ्टी मैन डिलीवर मी लॉर्ड। मतलब अनहोली रेस हो या दुष्ट लोग हों, उनसे मुझे बचाओ। तो इसलिए जो है यहाँ से जो है वो वायलेंस का शुरू हुआ और कैथोलिक्स ने उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को मारा। तो 15 से 16 लेके 1812 तक उन 300 साल में 15 लाख हिंदू मारे गए गोवा में, अकेले गोवा जैसे एक छोटे प्रांत में। तो थर्ड उसमें वोएज में, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट था तो इसको भी पकड़ लिया पोर्तुगीज़ ने, और उसको भी बड़ी यातनाएं दी, और उसको, लेकिन उसने जब माफ़ी मांगी और उसने बोला नहीं मैं अभी कैथोलिक में कन्वर्ट हो जाऊंगा, तब जाके उसको छोड़ा उसको। तो ये थी हमारे टैवर्नियर की। तो ये महाराज जो हैं 200 कैरेट के ऊपर के डायमंड हमारे यहाँ से लेके चले गए, जिनको हमें वापस लाने की ज़रूरत है। हम कोहिनूर के बारे में तो बात करते हैं कि हमें वापस लेके आना है, लेकिन हम ये होप डायमंड हो गया, ग्रेट डायमंड टेबल हो गया या ग्रेट मुगल डायमंड हो गया, इनके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। तो चलिए हम थर्ड उस पर चलते हैं। ये रशियन थे, ये अफनासी निकेतिन। तो ये रशिया से आए थे 1490s में, ये मतलब 15वीं सेंचुरी में। तो रशिया का जो उस समय बैकग्राउंड था, रशिया भी इंडिपेंडेंट जस्ट उस टाइम पे हुआ था। उस समय मंगोलों का राज था वहाँ पे। तो पहले चंगेज़ खान का और उसके बाद जो है कुबलई खान का जो उसका बेटा था। तो उन लोगों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था रशिया में। तो रशिया, इतना आतंक अंग्रेज़ों ने भी और मुगलों ने भी इंडिया में नहीं मचाया जितना मंगोलों ने वहाँ मचाया हुआ था। तो उस समय जब मंगोलों का अपना डिक्लाइन हो गया, जब कुबलई खान के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी अच्छा निकला नहीं, तब ये रशिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया उस समय। तब रशिया को लगा कि हम दोबारा जो है, उस समय फिर टर्क जो है वो एसेंट पे थे। टर्क जो है इंडिया पे भी अटैक कर रहे थे, पर्शिया पे भी अटैक कर रहे थे। तो उनको लगा कि कहीं हम पे वापस ना अटैक करें ये लोग। ये तो उन्होंने सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की सोची कि हम जो है अगर ताकतवर रहेंगे तो हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। तो उनको चाहिए था लोग जो जाके पता लगाएं इन्फॉर्मेशन सेंट्रल एशिया के बारे में, पर्शिया के बारे में, इंडिया के बारे में। तो वो प्रमोट करते रहते थे, स्पॉन्सर करते थे वहाँ का राजा, रशिया जो के जो जार थे, कि भाई आप जाइए इन जगहों पे और बताइए कि क्या क्या स्थिति है वहाँ पे। तो इसी स्थिति में, इसी में, क्योंकि निकेतन को जो है वो घूमने का शौक था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको पर्शियन लैंग्वेज आती थी। पर्शियन लैंग्वेज आना एक अपने आप में बड़ा एसेट था उस टाइम पे, क्योंकि पर्शिया में तो पर्शियन बोली जाती थी। इंडिया में भी जो मुगलों के टाइम पे जो मेन लैंग्वेज थी उस समय वो पर्शियन थी। तो उसको तो अनुमति दे दी वहाँ के जो जार थे उन्होंने कि भैया ठीक है आप जाइए, थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप भी दे दी उनको। तो वो त्विर करके एक मॉस्को के पास में एक सिटी है, वहाँ से, वहाँ का रहने वाला था। तो वो वहाँ से निकला, कैस्पियन सी में आया, वहाँ से शिप बोर्ड किया। तो वहाँ पे एक बार तूफान आया और उसके बाद जो है वहाँ पे मंगोलों और तुर्कों ने उसको लूट भी लिया। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत वो सामान जो है अपना वापस ले पाया। तो उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो जिन लोगों के पास कोई भी जरा भी डेट था, जो जो जिनके ऊपर ऋण था, तो वो सब लोग जो हैं वो भाग गए इंडिया के साइड में, और जो जिनके पास कुछ नहीं था वो वापस चले गए वो। तो ये कैस्पियन सी पार करके और फिर पर्शिया होते हुए, पर्शिया में ये बहुत टाइम पे वहाँ पे रहा,
वहाँ पे। और पर्शिया में पहुँचते ही उसने मुसलमानी कपड़े जो है पर्शियन की जो जो वहाँ पे लोकल जो कॉस्ट्यूम्स थे वो उसने पहनने शुरू कर दिए। पर्शियन पहले ही आती थी उसको, तो वो पूरा जो है वो एक मुस्लिम पर्शियन बन गया था वहाँ पे वो। तो उसको लोग गोरी चमड़ी देख के उसको जो है उसको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट भी मिलती थी कि एक रशियन आया है हमारा और वो जो मुस्लिम बनने वाला है। तो वहाँ पे उसने जो है इंडिया के बारे में पता लगाया, और इंडिया के बारे में जब उसने देखा कि वो पता लगा कि इंडिया में जो घोड़े हैं वो बड़े ख़राब से हैं, पोनी टाइप के हैं, और जबकि उसको बड़ी डिमांड रहती है वहाँ पे अच्छे घोड़ों की। तो उसने हॉर्मूज करके एक सिटी है, पोर्ट सिटी है, वहाँ पे उसने बहुत सारे घोड़े खरीदे वहाँ पे कि मैं इंडिया में जाके उसको सेल कर दूंगा अच्छे दामों पर। तो वो वहाँ से पहले कैम्बे आया, और कैम्बे से फिर जो बॉम्बे के पास में एक रिसॉर्ट, मतलब रिसॉर्ट क्या बोलेंगे कि एक बीच है, टूरिस्ट प्लेस है अलीबाग, उस समय उसको चौल बोलते थे। तो वहाँ पे आया, और वहीं पे फिर वो जो है वहीं पे रहा, महाराष्ट्र के रीजन में ही उस समय वो वहाँ पे रहा। अब चूंकि वो उसको पर्शियन आती थी, और उस समय उस एरिया में महाराष्ट्र में अहमदनगर सुल्तान जो थे, बहमनी सुल्तान जिनको बोलते हैं, उनका राज था वहाँ पे। तो वो जो है वो बहमनी सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद गवन, वो भी पर्शियन था। तो वो जब इसने पर्शियन बोली तो वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया उससे, अब बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो जब दोस्ती हो गई तो उसने भी जो है उसको गाइड किया, उसने उसको सिक्योरिटी दी उसको, तो उससे जो है उसको बड़ा फ़ायदा मिला। तो जो उसने अपनी किताब लिखी, जो पहले ये निकेतन जो है अपनी डायरी मेंटेन करता था, सारे के सारे ट्रैवलर्स जो हैं अपनी डायरी मेंटेन जरूर करते थे, जो बाद में उन्होंने किताब में पब्लिश कर दिए उन्होंने। तो उसने उस डायरी में हिंदू वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो बहुत सारे आपको लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जो हैं वो मिलेंगे आपको कि 19वीं सेंचुरी में ही हिंदू वर्ड आया, उससे तो पहले था ही नहीं वर्ड ये। तो बट उसने जो है निकेतन ने अपनी डायरी में हिंदू वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो एक बार क्या वाक़या हुआ कि जो है अब जब जैसे ही ये इंडिया आया, पर्शिया में भी ऐसी था कि उसको बोलते रहते थे कि तुम जो है मुस्लिम बन जाओ। इंडिया में आते ही जो है सब लोग ट्राई करने लगे कि ये मुस्लिम बन जाइए। तो तो किसी ना किसी तरीके से वो जुगत बढ़ाते रहते थे कि भाई अब तुम बनो। तो वहाँ पे क्या रूल था उस समय अहमदनगर सुल्तान का कि 1 साल तक आप जो है, कोई फॉरनर आएगा 1 साल तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंडिया में, उसके बाद या तो आप मुस्लिम बन जाओ या फिर आप जो है वापस जाओ आप। तो इसको 3 महीने ही हुए थे, फिर भी इसका जो है इसके घोड़े ले लिए उसके, और इसको भी अरेस्ट करने की धमकी दी कि अगर मुस्लिम नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें घोड़े भी ले लूँगा, और तुम पे 1,000 गोल्ड कॉइन्स का मैं तुम पे फाइन भी लगाऊंगा। यहाँ पे उसकी जो मोहम्मद गवन से दोस्ती थी वो काम में आई। तो उसने इंटरवीन किया, उसने उसने बोला कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, जिसने जिसने पकड़ा था, और फिर उसको छुड़वाया उसके घोड़े को। तो ये इसका इसका रूट था, ये इसका जर्नी का। तो चौल जो मुंबई के नीचे है अलीबाग, वहाँ पे लैंड करके, और वो महाराष्ट्र में ही इसने 3-4 साल गुजारे। और एक लास्ट में जो है पर्वतम करके उस समय एक जगह का नाम था, जिसको आज आजकल श्री सैलम बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, जो ज्योतिर्लिंग भी है। तो वहाँ पे बड़ा भव्य जो है वो शिव जी का मंदिर था वहाँ पे। तो ये आज की फ़ोटो है ये। तो उसने देखा कि इतना विशालकाय मंदिर था ये कि उसके शहर के बराबर था ये शहर उससे थोड़ा सा ही बड़ा था इसमें। तो बोलता है कि इतनी सारी एक्टिविटी होती थी वहाँ पे, गुरुकुल भी चल रहा है वहाँ पे, हॉस्पिटल भी हैं वहाँ पे, इतने सारे भक्तगण आ रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं और फिर वहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं। तो मतलब एक पूरा एक इकोनॉमिक हब था वो टेम्पल जो है। तो जैसे कि हमारे एंशियंट टाइम से ही जो टेम्पल थे एक तरीके के हमेशा से अपने आप में ही एक शहर होते थे। तो वैसे ही ये श्री सैलम भी था ये। और उसने जो है वो मतलब वो बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। उसने जो रशिया में देखे थे वो बिल्कुल छोटे छोटे चर्च देखे थे, उसने कभी ऐसा देखा नहीं कि इतने बड़ा भी कुछ हो सकता है। बट उसने ये भी बोला कि फिर भी जो है इसके बावजूद भी जो है इंडिया इंस्लेव्ड है मुस्लिम्स के द्वारा। तो ये कैसे है ये? तो उसने बोला कि मुस्लिम्स जो हैं या क्रिश्चियंस जो हैं पूरे वर्ल्ड पे क्यों राज कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक भगवान है। तो बेसिकली ये भी जो है वो उसी कैटेगरी का था, मिशनरी टाइप का। तो इस पे जो है वो एक निकेतन ही एक ऐसा ट्रैवलर था जिस पे पूरी एक फीचर फिल्म बनी है परदेसी नाम से। इसमें नरगिस हीरोइन थी और इसका हीरो का रोल वहाँ के एक एक्टर ने किया था, ओलेग नाम था उसका। तो उसकी जो ट्रैवल डायरी थी, वो जब वापस जा रहा था तो ब्लैक सी में के एक रिसोर्ट में इसकी डेथ हो गई थी। तो फिर ट्रैवल डायरी कोई चुरा लिया उसको, पर 200-300 साल के बाद वो डायरीज मिली। तो उसको जो है वो किसी ने
एक किताब में पब्लिश कर दी है जिसका नाम था वोएज बियॉन्ड थ्री सीज। थ्री सीज मतलब यहाँ पे कैस्पियन सी, अरेबियन सी एंड ब्लैक सी। तो उसने बोला कि बाद में उसने किताब में जो कंक्लूड किया कि अगर किसी को इंडिया जाना है तो बेहतर होगा कि वो मुसलमान बन जाए, अदरवाइज जो है बड़ा हरेसमेंट है। तो सोचिए एक ट्रैवलर जो है 3-4 साल में ही इतना हरेस हो गया, तो जो हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कितना जो है हरेसमेंट झेला होगा, कितनी यातनाएं झेली होंगी उन्होंने। तो उसने पूरा जो है इंडिया के बारे में लिखा है कि क्या सिचुएशन थी इंडिया में। उसने ये भी लिखा है कि हिंदुओं को जो है वो घोड़े पे अलाउड नहीं था महाराष्ट्र में, सिर्फ मुसलमान ही जा सकते थे, उनके पास तलवार रखने का भी अधिकार नहीं था। तो बहुत सारे अधिकार जो थे वो हिंदुओं के पास थे ही नहीं। तो ये था निकेतन के बारे में ये। अच्छा, इसमें एक अच्छी स्टोरी थी कि निकेतन ने बेसिकली जो हमारा जो बड़ा अच्छा फ्रेंड है, या कह सकते हैं आप जो हमेशा से ऑल वेदर फ्रेंड जिसको बोलते हैं, रशिया है, तो निकेतन ने उसकी नींव रखी थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी जो इंडिया और रशिया जो है बहुत बड़े अच्छे फ्रेंड रहे, आज भी हैं। अभी जब कोरोना के बाद में हम सारा अपना मैक्सिमम ऑयल जो है रशिया से ही परचेज कर रहे हैं। तो एक बार खुरुशेव जो थे सोवियत रूस के, वो इंडिया आए थे, दिल्ली आए थे। तो नेहरू जी ने जो है, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे 1960 के दशक में। तो नेहरू जी ने पूछा, उनको पता लगा होगा निकेतन के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि भाई निकेतन इतना ट्रैवलर था, इंडिया आया, इतने साल यहाँ पे रहा, तो कोई मूर्ति वूर्ति लगा रखी है? तो अब खुरुशेव को पता ही नहीं था कि निकेतन कौन है। तो उन्होंने बोल दिया हाँ हाँ है। तो फिर जब शाम को जब होटल पहुँचे वो, तो उन्होंने फ़ोन किया मॉस्को में कि भाई ये निकेतन कौन था और उसकी कोई मूर्ति है क्या रशिया में। तो उनको भी नहीं पता था, जो होम मिनिस्टर रहा होगा। तो फिर बाद में फ़ोन आया, जब उन्होंने कॉल बैक किया तो वो बोला कि ऐसी तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा यार नेहरू जी अभी 6 महीने बाद आएंगे। तो पहले उस समय ऐसी दोस्ती थी कि हर 6-7 महीने में उनका प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आता था, या फिर हम लोग वहाँ जाते थे। तो बोले नेहरू जी अभी 6-7 महीने के बाद आएंगे यहाँ पे, तो उससे पहले वो मूर्ति होनी चाहिए। तो आनन फानन जो है 4-5 महीने में वो मूर्ति डिज़ाइन की गई, और उसके बाद जो है उसको होम टाउन था त्वेर, वहाँ पे उसको लगाया गया। तो अभी हम चलते हैं विजिट्स के बारे में। जो महिलाएं आई थी यहाँ पे, तो बड़ी सारी यूरोपियन महिलाएं आई थी, और ये सब जो हैं वो 18वीं सेंचुरी के लास्ट में आई हैं। इसके 2 कारण थे इसके, कि एक तो जो आते थे पहले केप ऑफ गुड होप होके, अफ्रीका का जो नीचे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसमें होके आते थे। तो उसमें 6 महीने लगते थे उस जर्नी में। और उस जर्नी में क्या होता था कि बहुत सारे सेलर जो हैं, 50% सेलर मारे जाते थे, क्योंकि वो जब शिप चलता था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग ड्राई मीट लेके चलते थे और उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते थे, और उसके बाद जब ज़रूरत होती थी तो उसको बॉयल करके खा लेते थे उसमें नमक डाल के। तो बड़ा ब्लैंड सा होता था, और सिर्फ पूरे टाइम में मीट ही खाते रहते थे वो लोग। तो मीट खाने से क्या होगा, विटामिन सी की जो है उनके में बड़ी कमी होती थी। तो इसलिए जो सेलर जो थे वो आधे मारे जाते थे। अगर 200 चल रहे हैं वहाँ से, तो इंडिया 100 ही पहुँचते थे। तो जो 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, तो 197 जो है वो उसके साथ सेलर थे। जब यहाँ पे आए तो सिर्फ जो 113 मारे गए, तो 70-80 ही जो बचे थे वही यहाँ पे आए। तो इसलिए महिलाएं अवॉइड करती थी। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिस्करेज भी करती थी उनको कि यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये वुमेन थी, इनका एक अलग ऑब्जर्वेशन था इंडिया के बारे में। तो इन्होंने पाया है कि जो इंडियन वुमेन है स्पेशली, तो उनका नज़रिया वुमेन की तरफ ज़्यादा था। उन्होंने पाया है कि इंडियन वुमेन वर मोर ऑपरेस देन इंडियन मैन। तो उनका एक मैसेज था कि जो वाइट मैन शुड सेव ब्राउन वुमेन फ्रॉम द ब्राउन मैन, तो उनको बचाना था। तो वो जो इतना क्रूरता करते थे, तो उनको लगता था कि ये वाइट मैन बर्डन है ये, तो इनको बचाना, इनको सिविलाइजेशन में लेके आना जो है वो गोरों का काम है वो। तो इनमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी वो थे फैनी पार्क्स। 1830s में ये करीब आई थी ये इंडिया में ये। तो उस समय ये बड़ी गिनी चुनी जो थी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पहले गिनी चुनी में से ये एक थी ये। तो ये 1831 में जब विलियम वेंटिक जो थे गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने जो है, उनको पैसे की कमी रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी है, तो उसका काम था बेसिकली कि जितने पैसे हम कमा सकते हैं उतने हम कमा लें। तो उनको लगा कि ये ताजमहल क्या ज़रूरत है, इसको जो है हम बेच देते हैं। तो उन्होंने ताजमहल का टेंडर निकाला बेंटेक साहब ने, और अखबारों में निकला टेंडर वो बाकायदा। तो एक सेठ लक्ष्मीचंद जैन थे, तो उन्होंने जो है हाईएस्ट बिड करी 2 लाख रुपए की। और उसके बाद जो है वो जब इवेल्युएशन हुआ बिड का,
तो पाया गया कि 2 लाख तो बहुत कम है ताजमहल के लिए, इतनी बड़ी लैंड है वो और इतना वैभवशाली इमारत है। तो वो रीटेंडर हो गया वो। तो जब रीटेंडर हो गया तो दोबारा से अखबारों में इश्तेहार निकाला गया, टेंडर निकाला गया। तो उसके बाद फिर से जो है सेठ लक्ष्मीचंद जैन बड़े रईस थे उस समय, वो सबसे रईस हिंदुस्तानियों में से उस समय थे। तो उन्होंने जिस बार जो है वो 7 लाख की बिड करी। अब जो है फैनी पार्क्स जो है वो मैदान में कूद गई। वो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है कि ये जो आप हिंदुओं को बेच रहे हो, ये इसमें रूहें रहती हैं, इसमें शाहजहाँ की रूह है, इसमें मुमताज़ महल की रूह है, उनके बच्चों की वो है, और यहाँ पे वो सब रह रही हैं, आप इसको बेच दोगे। ये हिंदू तो तोड़ के ही जो है उसको मंदिर बना देंगे, ये इन लोगों का काम ही है मंदिर बनाना। तो उसने जो एक उस समय जॉन बुल करके एक पेपर आता था कलकत्ता से, जिसका नाम अभी स्टेट्समैन है, तो उसमें उन्होंने बड़े सारे रोज़ जो है उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए और मुसलमानों को भड़का दिया बिल्कुल। वो सब लोग सड़क पे उतर आए, जैसे भी आजकल होता है वैसे ही उस समय भी हुआ। तो इतना उन्होंने आक्रोश पैदा कर दिया मुसलमानों के मन में कि जो वेंटिक साहब को जो है वो टेंडर को ही उसको स्क्रैप करना पड़ गया। फिर कुछ सालों बाद जो है, जब भी ब्रिटिश जो है वो रॉयल्स आते थे, उनके राजा आए या रानी आए या प्राइम मिनिस्टर आए वहाँ के ब्रिटिश के, तो वो नाच गाने का प्रोग्राम करते थे। तो उन्होंने एक बार ताजमहल में भी रखा डांस प्रोग्राम अपने रॉयल्स के लिए। तब भी जो है वो पार्क्स जो हैं वो भड़क गई, वो कि अगेन वही सेम नैरेटिव कि यहाँ पे रूहें रहती हैं, आप उनको डांस जो है चला रहे हो, डिस्टर्बेंस हो रहा है ये वो। तो इस तरीके से फिर जो है वो ब्रिटिश उनसे बड़ा डर गए फैनी पार्क से कि ये कौन महिला है, ये क्यों जल्दी नहीं जा रही है यहाँ से ये। हालांकि ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक बार एलिफेंटा में भी जो है वो डिनर ऑर्गेनाइज किया था, जो वहाँ के किंग आए थे वहाँ पे। तो उस जब डिनर होस्ट किया एलिफेंटा में, तो बहुत सारे स्कल्पचर्स डैमेज हुए थे वहाँ पे। तो उन लोगों का ये काम था वो कि शोकेस करना, और डैमेज हो रहा है तो वो एक कोलेटरल डैमेज है, उसको कोई उनसे मतलब नहीं होता था। हालांकि फैनी पार्क्स ने कुछ अपने लिखा भी है कि जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडिया में ही एक मिनी इंग्लैंड बना दिया है। तो उसी तरीके के जो है टेनिस कोर्ट्स थे, उसी तरीके की विक्टोरियन महल होते थे वहीं पे, वैसे ही स्विमिंग पूल। तो ताकि जो है वो उनको महसूस ना हो कि वो इंग्लैंड में नहीं है। बस एक ही चीज़ उनको खाई जाती थी या वो थी यहाँ की गर्मी। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने हिल स्टेशन बना दिए, उन्होंने नैनीताल में, मसूरी में, शिमला, दार्जिलिंग, तो हर जगह पे उन्होंने हाँ उधर ऊटी और कोडाई कैनाल बना दिया। तो जहाँ जहाँ पे उनको मिला तो वहाँ पे हिल स्टेशन बना दिया। तो बेसिकली वो इंग्लैंड को ही उन्होंने वहाँ यहाँ पे रिक्रिएट कर दिया। और कई जो अंग्रेज जो थे वो इतनी सुविधाएं थी वहाँ पे यहाँ पे कि वो इंग्लैंड में भी नहीं थी उनके पास। इतने सारे जो है नौकर चाकर यहाँ पे थे, वहाँ पे एक भी नहीं था। तो वो बड़ी जो है वो ऐशो आराम की नौकरी यहाँ पे कर रहे थे वो। तो उन्होंने बताया कि इंडियंस की हालत कितनी बुरी है और ब्रिटिश कैसे जो हैं वो वैभव में रह रहे हैं। तो ये बंगाल का ये एक फेस्टिवल हुआ करता था, ये आजकल भी कहीं कहीं पे होता है ये। तो ये चरक ट्री की पूजा की जाती है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा होती है, और जिसमें कि भाई हमारे पास धन आए, हमारे पास जो दुख मिटे, हम पे हम सुख आए, हमारे बच्चे पैदा हों। तो उसके लिए उनकी आवाहन किया जाता था शिव पार्वती का। तो उसमें साथ में जो मेला लगता था उसमें क्या होता था कि जो पुरुष होते थे उनके जो स्किन में ही हुक लगा देते थे, मेटल हुक, और मेटल हुक में वो रस्सियां बांध के उनको नचाते थे, और मिनिमम ड्यूरेशन था आधे घंटे का। तो फैनी पार्क्स ने जब इसको देखा तो वो भड़क गई वो अगेन, कि उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही जो है वो अनसिविलाइज्ड है ये, और ये क्यों कर रहे हैं, इनको यातनाएं दी जा रही हैं। हालांकि जो है वो अपने मन से करते थे, कोई फोर्स नहीं करता था इनको। खैर, तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा लिखा तो उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है पर लगाम कसनी चालू कर दी, बंद नहीं किया, लेकिन बाद में 20-25 साल बाद 1864 में उसको बैन ही कर दिया गया। तो आजकल भी कहीं कहीं पे आइसोलेटेड प्लेस पे ये होता है अभी भी है। एज़ यूजुअल उन्होंने सती, कास्ट सिस्टम और पर्दा सिस्टम के बारे में भी लिख दिया। नॉर्मली लोगों ने कभी भी पर्दे के बारे में, हिजाब या बुरके के बारे में लोग बोलते नहीं हैं, बट फैनी पार्क्स ने लिखा एक जगह पे कि वो किसी मुसलमान के अपने दोस्त के घर में गई, तो वहाँ की जो महिलाएं थीं वहाँ पे, तो वो 4 बीबियाँ होती हैं, उनकी 4 पत्नियाँ होती हैं, सबकी आज भी होती हैं और तब भी होती थीं। तो एक ने पूछा उनसे कि भाई आपके हस्बैंड की कितनी और बीबियाँ हैं? तो फैनी पार्क्स ने बोला मैं तो अकेली हूँ मैं। तो वो लोग बड़े सरप्राइज़ हुए, बोले यार कि आपका जो है आपके हस्बैंड का एक से कैसे काम चल जाता है। खैर, उन्होंने फिर अपनी स्टोरी सुनाई उन लोगों ने कि कैसे उन चारों के बीच में झगड़ा होता है और इस टाइप का। तो उन्होंने बड़े ग्राफिक वे में उन्होंने अपनी किताब में फैनी पार्क्स ने इसके बारे में लिखा हुआ है
एक और इंटरेस्टिंग जो है वो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया फेनी पार्क्स ने। बाकी जो था कि जो क्रिश्चियंस ने भी अपना जो है उस समय 1857 के पहले तक, ये भाई 1600 में आ गए और 1756 प्लासी के युद्ध के बाद जो है इनका वर्चस्व था। और तो 1857 तक जो है वो महिलाएं अलाउड नहीं थी, जैसे मैंने बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डिस्करेज करती थी, क्योंकि जो शिप जर्नी थी वो बहुत ही कॉस्टली थी, बहुत ही रिस्की थी। तो अब जो पुरुष आ रहे हैं उनको महिलाओं की ज़रूरत पड़ती थी उनको। तो वहाँ पे क्या था कि सब लोगों ने अपनी मिस्ट्रेसेस रखी हुई थी। तो जो कैलकाटा के फाउंडर थे जॉब चरनॉक, तो उन्होंने जो है अपनी एक उन्होंने हिंदू गर्लफ्रेंड रखी हुई थी, जिससे उनके 3 बच्चे थे। तो इसी तरीके से सबके जो है मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स थी। तो जो उसमें सबसे कलरफुल बंदा था जो अंग्रेज़ था वो था डेविड डॉक्टर लूनी। तो जिसका ये जो है वो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये इसकी 13 बीबियाँ थीं। 13 बीबियाँ थीं या 13 गर्लफ्रेंड्स थीं। इतनी तो मुसलमानों की भी नहीं होती जितनी इनकी थी। तो इसको इसीलिए मुसलमानों ने इनका नाम लूनी अख्तर रख दिया था। लूनी मतलब पागल जिसको बोलते हैं, ऑक्टर से अख्तर कर दिया उसको, तो पागल अख्तर करके उसका नाम था लूनी अख्तर। हालांकि ये जो है युद्ध कला में बड़े कौशल थे। तो जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1825 में, तो उन्होंने बड़ा कौशल दिखाया था उसमें, और जो है वो अंग्रेज़ बड़े उससे खुश हुए थे ये। तो 1857 में जब अंग्रेज़ों ने मराठाओं से एक्चुअली जो सत्ता हासिल करी थी, बाकी बोलते हैं कि मुग़लों से किया है, बट मुग़ल जो है 1707 में औरंगज़ेब के बाद बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। उस समय मराठा जो थे वो कटक से औटक तक जो है वो थे, उनका राज्य था। तो उन्होंने एक्चुअली जो है वो 1802 पहले 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1802 में जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसके बाद से जो है उनका वर्चस्व हुआ था। तो एक्चुअली मराठाओं से जो है उन्होंने सत्ता हासिल करी थी। तो उस जो 100-150 साल में जब तक महिलाएं अलाउड नहीं थी, तो सबने अपनी अपनी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रखी हुई थी। तो हम बात कर रहे थे इस डॉक्टर लूनी की। तो उन्होंने 13 इनकी गर्लफ्रेंड्स थी। तो ये उन्होंने दरबार लगा रखा है, और इनका पहनावा भी बिल्कुल मुगलई था। वैसे ही वो हुक्का का बड़ा शौक था, जैसे ये आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि ये हुक्का जो है ये पी रहे हैं, और इनकी महारानियाँ जो हैं ये इनकी जो है एंटरटेन कर रही हैं उनको। पीछे एक नौकर देख सकते हैं, वो कितना खुश है, जो इनका कुछ बजा रहा है वो। तो इनकी एक रानी थी मुबारक बेगम। तो वो मुबारक बेगम जो थी वो इनकी फेवरेट रानी थी। जब इनकी मृत्यु हुई 1825 में, तो उस रानी ने दोबारा एक मुग़ल से शादी कर ली। तो उस रानी ने जो है वो फिर 1857 की लड़ाई में जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी वो। फिर यही लोग चारनॉक हो गए, डॉक्टर लोनी हो गए थे। तो ये बोलते थे कि ब्रिटिश वुमेन आर वेरी डिमांडिंग, सो देयर इज नथिंग लाइक इंडियन वुमेन। तो एक बार फिर इसी तरीके से एक जोक था कि इफ एनीबडी लिव्ड फॉर फ्यू मंथ्स विद इंडियन वुमेन, दे नेवर मैरी इंग्लिश वुमेन। तो ये ऐसा था इसमें। तो बाकी सोल्जर्स के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं रख पाते थे, तो ब्रिटिशर्स ने एक हरम बना रखा था हर कैंटोनमेंट में। तो 75 कैंटोनमेंट्स ब्रिटिश ने बनाए थे। तो 75 कैंटोनमेंट्स में करीब करीब 4000 लोग रहते थे वहाँ पे। तो उन 4000 के लिए उन्होंने सब जगह पे 100 महिलाओं का प्रयोजन किया हुआ था। तो उनका क्या था कि चेकअप के बाद जो है वो बिल्कुल मुग़ल हरम की तरह था, बिल्कुल रिप्लिकेट वैसे ही किया था कि एक बार आप इंटर कर गए तो एग्ज़िट जो है वो पॉसिबल नहीं था। आपको वहीं पर रहना है, सारी सुविधाएँ हैं, बस आपके पास अपनी फ्रीडम नहीं है। तो वैसे ही इन लोगों ने भी किया था। बट ये 1857 के इंडिपेंडेंस से ये ख़त्म हो गया था। ये जब ये ख़त्म हो गया ये हरम का कॉन्सेप्ट 1857 में, और उसके बाद सुएज़ कैनाल जब 1869 में बन गई, तो जो जर्नी थी इंग्लैंड से इंडिया की वो 6 महीने से 3 हफ्ते रह गई बस। तो इस समय क्या हुआ कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अभी हमारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई थी। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, उस समय जो क्राउन वॉज रूलिंग इंडिया। तो उन्होंने अलाउ किया कि आप अपनी वाइफ को लेके जा सकते हैं इंडिया में। तो सारी की सारी इंडियन वुमेन, वो जो इंग्लिश वुमेन जो हैं, दे यूज टू कम टू इंडिया विद देयर हस्बैंड्स। बट ऐसा हुआ कि अभी उस समय तक इंग्लैंड जो है पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था। तो जितने भी पुरुष थे, ब्रिटिश लोग थे, वो सब के सब जो है इंग्लैंड से बाहर होके कॉलोनीज़ में ही पोस्टेड थे। तो इंग्लैंड में सिर्फ महिलाएं ही बची हैं। तो अब उनकी शादियाँ ही नहीं हो पा रही थी उस समय। तो वो क्या करें कि तो वो लोग था कि 1 साल के लिए वो यहाँ पे आती थी, हर कॉलोनी में जाती थी, जो भी जहाँ जाना है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडिया आती थी।
तो उनका पहला जो था उसको फिशिंग फ्लीट बोलते हैं कि दे यूज टू फिश फॉर द हस्बैंड। तो टाइम गिवन वॉज 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। तो 1 महीने का ही उनको, 1 साल का ही वीज़ा मिलता था उनको। तो 1 साल में आपको वो दोपहर में लैंड किया तो शाम से वो स्टार्ट कर देती थी ये प्रोसेस ये। तो उनका पहला जो 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 टारगेट होता था वो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो नहीं मिले तो फिर ब्रिटिश सोल्जर, फिर थर्ड पे आते थे इंडियन प्रिंसेस और नवाब्स। तो इसी तरीके से जो पंजाब में जो बहुत सारे जो नवाब थे उनकी ब्रिटिश बीवियाँ थीं, जैसे कपूरथला के नवाब थे, भरतपुर के नवाब थे, उन सब की जो है मल्टीपल लोगों की जो है यूरोपियन वाइफ्स थी। तो ये लोग जो आती थी ये 1 साल के लिए रहती थी, जिनको मिल गया तो ठीक है, अधिकतर को मिल ही जाता था, जिनको नहीं मिलता था उनको बड़ी जो है अपमान सहना पड़ता था और उनको बोलते थे रिटर्न एम्प्टीज, कि आप खाली हाथ वापस जा रहे हो। और भी बड़ी सारी महिलाएं आई, एनी बेसेंट आई और निवेदिता आई, तो मैं उन लोगों की स्टोरी सब जानते हैं। एक अलग शख्सियत थी वो फरीदा बेदी करके, तो ये बड़ी पढ़ी लिखी ब्रिटिश महिला थी ये, और ऑक्सफोर्ड में ये पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड पास आउट थी ये। तो इनके जब ये इंडिया आई, ये इंडियन कल्चर से, वहाँ पे भी शायद इनका जो टॉपिक था वो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म था। तो जब ये इंडिया आई तो इनका जो है इश्क हो गया बीपीएल से, बाबा प्यारेलाल। तो ये पंजाब के एक बड़े नामी गिरामी ट्रेडर थे, ये बड़े रिच बंदे थे ये, बेदी। तो ये उनसे तभी उनका नाम, जब शादी हो गई उनकी तो उनका नाम फरीदा बेदी हो गया। तो ये बाद में ये जो है ये इन्होंने विपासना का कोर्स किया दिल्ली में, और उसके बाद ये बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। तो जब चाइना ने के डर से, जब चाइना ने अटैक किया तिब्बत पे, लहासा पे, तो दलाई लामा भाग के आए, तो ये प्रोटोकॉल ऑफिसर थी उनकी है। तो जब वो दिल्ली आए तो उनका रहन सहन का, उनका जो सबको मिलवाने का के जिम्मा जो है वो फरीदा बेदी को दिया गया। तो इन्होंने जो है बड़ी स्तूप का भी जो है इन्होंने निर्माण कराया, और बुद्धिज़्म का बड़ा प्रमोशन इन्होंने किया। तो और जो बॉलीवुड का जो कबीर बेदी एक्टर हैं ये इनके पुत्र हैं। तो बाकी भी बहुत सारी मैंने इंसिडेंट्स लिखी हुई हैं, वो आपको इस किताब में आपको वो मिलेंगी। ये अभी एक ये भी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी थे, इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं आजकल, निकोलाई मनुची। तो ये इटालियन थे। अब आप इनकी जो ये पेंटिंग देख रहे होंगे, तो इन्होंने पोर्ट्रेट बनवाया था, ये कमीशन पोर्ट्रेट है उनका ये। तो इसमें देख रहे होंगे कि इनकी भी पोशाक जो है वो मुगलों वाली है, उनका पजामा भी वैसे ही है, और बड़े किसी गार्डन में टहल रहे हैं फूल लेके, जैसे मुगल टहलते थे ना जहांगीर, तो वैसे ही उनका प्रताप जो है इसमें दिख रहा है। टोपी भी उनकी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ी बहुत तोन निकल आई है, जैसे इंडिया में सबकी निकली रहती है वैसे ही इनकी भी है। तो मनुची जो है ये इटालियन थे, वेनिस में रहते थे। तो वेनिस से एक पोर्ट था वहाँ पे, अभी भी है पोर्ट। तो ये करीब 17वीं सेंचुरी में, 400 साल पहले, ये 14 साल के थे, इनको जो है वेनिस में देखते थे, घर से जब स्कूल जाते थे तो कि बहुत सारे शिप जो हैं वो जा रहे हैं। तो जब 14 साल के थे तो ये एक शिप में ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच गए और उसके अंदर घुस गए और एक स्टोर रूम में जाके छुप गए ये। तो जब स्टोर रूम में जाके छुप गए तो, और जब हाई सीज़ में पहुंच गया शिप, वो एक दिन के बाद जब बड़ी तेज भूख लगी इनको, तब उन्होंने कैप्टन को बोला कि भाई मैं तो ऐसे आ गया। और जिन लोगों ने देखा भी था तो उनको लगा कि ये किसी क्रू का जो है वो बेटा होगा, ये साथ में जा रहा होगा, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इन पे। इसकी तरफ दाढ़ी मूछें भी नहीं आई हुई थी इसकी। खैर जब कैप्टन ने फिर सभा करी और उनको सबको बुलाया कि भाई कोई इनका जो है वो पेरेंट बनना चाहता है, तभी एक इंग्लैंड के कोई भाग रहा था वहाँ की गवर्नमेंट से, वो इंडिया आ रहा था, तो बोला कि ठीक है ये मैं उसको अपने पुत्र की तरह जो है वो मैं पालूंगा उसको। तो फिर उससे वो उनकी छत्र छाया में ही रहे वो। तो वेनिस से शिप चला और फिर वो टर्की में ब्लैक सी में आके रुक गया, और वहाँ पे उन्होंने जो है उसको, वहाँ से उतरे वो, और उसके बाद पर्शिया होते हुए, टर्की और पर्शिया होते हुए वो हॉर्मूज पे आए, जो उसको बंदर अब्बास भी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो 6-7 महीने उन्होंने स्पेंड किए और उतने में ही इसने पर्शियन सीख ली। तो आप ये देखिएगा कि मेन जो थ्रेड है इन सारे ट्रैवलर्स का वो है पर्शियन। तो कोई इंडिया में सर्वाइव करना है तो पर्शियन जो है मैंडेटरी थी। अब वो आ रहे हैं और तो इसका मतलब उनके पास जो लैंग्वेज स्किल्स बड़ी अच्छी थी, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल, तो उन्होंने सबने इन्होंने भी पर्शियन सीख ली। और जब वो सूरत आए और उसके बाद जब आगरा पहुँचे तो धड़ल्ले से इन्होंने मुगल दरबार में जो है शाहजहाँ के सामने पर्शियन बोलनी शुरू कर दी। तो सब लोग अवाक रह गए, शाहजहाँ भी बिल्कुल, कि ये गोरा जो है ये इतनी अच्छी पर्शियन कैसे बोल सकता है, मैं भी इतनी अच्छी पर्शियन नहीं बोल पाता हूँ।
तो बिल्कुल उन्होंने जो है बिल्कुल अपना समा बांध दिया वहाँ पे मुग़ल दरबार में। तो शाहजहाँ के बाजू में जो है उनका बेटा बैठा हुआ था, जो फेवरेट चाइल्ड था उनका, दारा शिकोह। तो उन्होंने दारा शिकोह को बोला कि यार तुम इसके साथ में रहो इसको। तो उसको जो है दारा शिकोह के सुपुर्द कर दिया। और ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती हुई इन दोनों के बीच में, मनूची और दारा शिकोह के बीच में, कि वो सालों साल तक चली, जब तक कि दारा शिकोह मरा नहीं। तो सबको पता है कि दारा शिकोह को जो है औरंगजेब की तख्त के लिए लड़ाई थी। तो बड़े सारे वॉर हुए, दारा शिकोह भागता रहा क्योंकि औरंगजेब बड़ा क्रूर था इंसान, और उसके पास सारी सेना भी थी। दारा शिकोह जो थे वो पढ़े लिखने में बड़ा जो है वो विश्वास रखते थे। इन्होंने उपनिषद का भी जो है अनुवाद किया पर्शियन में, दारा शिकोह ने। वहीं से वो यूरोप में पहुंचा। तो ये जो है पहले दारा शिकोह लाहौर भाग के गया आगरा से, तो मनूची भी उसके साथ रहे। फिर मनूची जो है लाहौर से जो है वो फिर गुजरात वापस आए सिंध होते हुए, और फिर जो है बुरहानपुर से लेके, तो जहाँ जहाँ पे दारा शिकोह गया बस्ते बचाते औरंगजेब से, तो वहाँ वहाँ पे भी ये मनूची साथ में रहा। तो ऐसी दोस्ती थी। तो जब ये मारा गया ये दारा शिकोह, तब उसके बाद जो है वो इन्होंने औरंगज़ेब ने ऑफ़र भी किया इसको कि तुम इतने लॉयल हो। मुग़ल जो है वो लॉयल्टी को वो बड़ा मानते थे कि लॉयल जो होना चाहिए ये सबसे बड़ी चीज़ है किसी इंसान के अंदर। तो उसको ऑफ़र भी किया। अब दारा शिकोह इसको 80 रुपये देते थे उस टाइम पे, 80 रुपये पर महीना। 80 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी उस समय। तो औरंगज़ेब ने उसकी डबल कर दिया कि मैं तुमको 160 रहूँगा, 160 रुपये दूंगा महीने के, लेकिन तुम मेरे पास रहो। अब लेकिन इसको पता था कि बात बात पे जो है ये गर्दन काट देता है औरंगज़ेब। तो उसको जो है वो मनूची ने मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊँगा मैं। तो ये पहले लाहौर गया दारा शिकोह। लाहौर से ये जो आज का बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक बोलन पास करके एक है, तो बोलन पास में भी वो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे उसको एक खबर मिली जासूस से कि औरंगजेब तुम्हें यहाँ पे मार देगा। तो वो वापस बोलन पास से यू टर्न किया उसने, और फिर कहीं आके छुप गया। लेकिन हर समय उसको डर लगा रहता था कि औरंगजेब मुझे अब मार देगा, अब मार देगा। तो उसने कहा कि ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं एक बार लास्ट में युद्ध करूं और फिर मैं शहीद हो जाऊं। तब भी उसको जो है वो ट्रेचरी से ही उसको पकड़ा, उसको दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह के साथ ये हमेशा रहा ये। तो पहले लाहौर गया, लाहौर से ये बोलन पास गया जो बलूचिस्तान में है, जो अफ़गानिस्तान और अभी आज में पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा पास है वहाँ पे। तो वो बोलन पास में गया, वहाँ पे उसको खबर मिली कि औरंगजेब यहाँ पे आपको मार देगा। तो वो फिर वहाँ से भागा। तो इस तरीके से दारा शिकोह का लास्ट में जो जीवन था वो भागते हुए ही गुजरा। उसके बाद जो है दारा शिकोह के सैनिकों ने उस सैनिक ने पकड़ा जिसने इसकी कभी शाहजहाँ से जान बचवाई थी दारा शिकोह ने। उसी ने इसके साथ जो है वो उसका विश्वासघात किया और उसको पकड़ लिया। तो दारा शिकोह को जो है वो पेश किया गया औरंगज़ेब के दरबार में, और उसको जो है उसको बोला कि तुम माफ़ी मांगो मुझसे, ये करो। तो जो है वो दारा शिकोह ने मना कर दिया, और उसका सर काट के जो है उसको उसके सामने पेश किया, औरंगज़ेब के सामने। तो ये एक पेंटिंग है, आप ये देख सकते हैं कि वो उसके थाली में सर लाके जो है वो पेश किया गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि औरंगजेब उठा अपने तख्त से, अपने सिंहासन से, और उठ के सर को चारों तरफ से देखा हर एंगल से कि वाकई में ये दारा शिकोह है या नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को दारा शिकोह को सबसे बड़ी थ्रेट मानता था वो। और उसको फिर उस सर को उसने पैक करा के, बिल्कुल जो है वो गिफ्ट पेपर में उसको पैक करा के अपने पिताजी के पास भेजा, शाहजहाँ के पास, जो कि उस समय आगरा फोर्ट में कैद थे। और बोला देखो पिताजी, मैं आपको पैगाम दिया कि मैं आपको देखो अभी भी भूला नहीं हूँ, मैं आपको अभी भी याद रखता हूँ, और आपके लिए ये गिफ्ट, नायाब गिफ्ट भेजा है, ये वाकई में नायाब है, ऐसा कह के उसने जो है भेजा। तो जैसे ही शाहजहाँ ने उसको खोला और दारा शिकोह का सर देख के वो वहीं पे बेहोश हो गया वो। तो ऐसी क्रूरता जो थी वो औरंगज़ेब में दिखाई थी। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग बड़े भले थे, बट ये इनकी अलग ही लेवल की क्रुएलिटी थी औरंगज़ेब की। तो मनूची ने बड़ा डिटेल में लिखा इन सब के बारे में कि कितना बर्बर लोग थे ये मुग़ल जो थे ये। But did he write about the temples? Like he broke many temples and built mosques in place of temples. हम इसने ये लिखा हुआ है मनूची ने कि जो औरंगज़ेब जो है ये मंदिर तोड़वाता रहता था। उसने बनारस में भी एक मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया था, काशी विश्वनाथ का नहीं, किसी और मंदिर का। तो वो उसने किताब में लिखा हुआ है कि कैसे फिर लोगों ने डिफेंड करने गए बट वो कुछ कर नहीं पाए।
तो वो पूरा इन लोगों ने सब लिखा हुआ है उसमें कि कैसे जो है हिंदुओं की दुर्गति करी थी औरंगजेब ने या बहमनी सुल्तान ने। तो इन सब के बारे में, मंदिर के बारे में काफी। हाँ, मंदिर के बारे में कम लिखा है इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने डेली लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखा है। बट जहाँ जहाँ पे वो लिख सकते थे उन लोगों ने लिखा हुआ है ये। जैसे जैसे उसने निकेतन ने लिखा है श्री सैलम के ज्योतिर्लिंग के बारे में कि विशालकाय मंदिर था वहाँ वो, तो उसके बारे में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। खैर, जब ये औरंगजेब के पास में से जब चला गया तो वो उसको लगा कि आगरा में रहूँगा तो वो मुझे तंग करता रहेगा, तो मनूची जो है फिर लाहौर चला गया। तो लाहौर में जाके वो वहाँ पे बस गया। अब इसको था कि भाई कुछ तो जीवन यापन के लिए कुछ करना पड़ेगा। उस समय से ये 20 साल का था ये, जब वो चला था वहाँ पे 14 साल का था इटली से, और 4-5 साल में 20 साल का हुआ। तो अब ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है, तो क्या किया जाए। तो उस समय गोवा इंक्विजिशन से भागा हुआ एक पोर्तुगीज़ भी था, तो वो लाहौर में रह रहा था वो, तो उससे उसकी दोस्ती हो गई। और वो मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। वैसे भी जो है उस समय इंडिया में ये मुग़ल जो कहते थे कि कोई भी यूरोपियन है वो डॉक्टर तो है ही। तो बहुत सारे मुग़ल दरबार में जो हैं वो जो यूरोपियंस थे वो डॉक्टर की तरह ही रहते थे, चाहे उनको कुछ पता ना हो, लेकिन सब उनको डॉक्टर साहब बोलते थे या हकीम जी बोलते थे। तो उसको लगा कि ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है डॉक्टर का। तो उसने कहा कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, उसके पास 2-3 किताबें थी उस पोर्तुगीज़ के पास में, वो किताबें ली और वो पढ़ने लगा उनको, और उसको इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद जो है उसने एक अपनी अंगूठी जो है वो अपने घर भेजी और बताया कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं इंडिया में हूँ। उसको 5-6 साल के बाद अपने माँ बाप की याद आई और बोला कि इस अंगूठी को बेच के जो है कुछ और मेडिसिन की किताबें भेज दो जो लेटेस्ट निकली हों। तो वो उसने किताबें जो है वो मंगवा ली हैं और उसने बाकायदा पढ़ाई करी। तो इसी बीच में क्या हुआ कि जो है उसने अपने आप को एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया कि हाँ जी मैं जो है डॉक्टर हूँ मैं। तो और वैसे ही वो डॉक्टरों की तरह चलने लगा, और वैसे जो अचकन वचकन जो हकीमों का जो उस समय रहता होगा वो सब पहनने लग गया वो। तो जब लाहौर में था तो वहाँ पे एक उज्बेकी फैमिली रह रही थी वहाँ पे, तो उसके मोहल्ले में, तो वो बीमार पड़ गया और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो जब बीमार पड़ गया तो उसको बुलाया गया कि मनूची भाई आ जाओ देखो उसको क्या है। तो मनूची ने जाके देखा, और जैसे डॉक्टर लोग देखते हैं उसकी यहाँ पे नब्ज चेक करी, सीना चेक किया, गला चेक किया, माथा छू के देखा। तो वो सारे कार्यकलाप जो डॉक्टर करते हैं वो उसने की है उसने। और फिर बोला अच्छा ठीक है मैं दवाई जो है वो बना के लेके आता हूँ। उस समय ऐसा नहीं था कि केमिस्ट शॉप होती थी और जी प्रिस्क्रिप्शन दिया और दवाई ले ली, तो उस समय दवाइयाँ बनानी पड़ती थी। तो बोला कि और फिर वो सीधे जो है वो उस बहाने से आया और अपने पोर्तुगीज़ फ्रेंड को सिम्टम बताए कि भाई ये सिम्टम है उसके। तो उसने कुछ कुछ बताया कि ये दवाई बना लो, तो उसने कुछ जड़ी बूटी पीसी और जाके उसको दे दी उसको, और 2-3 डिस्क्लेमर डाल दिए कि अगर ठीक ना हो तो जो है मेरे पर ब्लेम ना आए। तो उसने बोला कि आप ये खाना मत खाओ, वो मत खाओ, आप बीफ मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, सिर्फ सूखी सब्जियां खाओ, तो जो कि हो नहीं सकता था किसी एक उज्बेकी फैमिली के लिए। और इस तरीके के उसने कई सारे बताए, और वो क्या हुआ कि 2 दिन बाद जो है वो ठीक भी हो गया वो। तो जैसे ही जब वो ठीक हो गया तो चारों तरफ जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से वो फैल गया कि ये जो है ये एक डॉक्टर आए हैं इटली से और ये बड़े अच्छे हैं, ये सबका इलाज कर देते हैं। तो उसी समय उनका नाम जो है वो हकीम मनूची पड़ गया। तो ये बड़े फेमस हो गए, ये इतने फेमस हो गए कि मुगल दरबार में आगरा में अगेन इनका नाम पहुंच गया। तब उस समय शाह आलम आ गए थे, उस समय औरंगजेब का जो बेटा था शाह आलम, तो वो राज कर रहा था। तो शाह आलम को पता लगा कि यार ये मनूची ये कौन आया हुआ है। तो उसने जो न्योता भेजा कि आप वापस आइए आगरा में। तो ये वापस जो है ये आगरा पहुंच गए और उनके दरबार में फिट हो गई है, और दरबार के जो रॉयल सर्जन बन गए ये हकीम मनूची। तो अब जो ये क्योंकि मनूची थे, अब शाह आलम जो है क्योंकि ये गोरी चमड़ी भी थी, यूरोपियन भी थे, और ये लोग जो है क्रिश्चियंस को बड़ा अच्छा मानते थे जितने भी मुगल्स थे। तो इनको जो जो महिलाएं थी इनके हरम में, एक हरम में मुगलों के 2000 महिलाएं रहती थी कम से कम, और हर नेशनैलिटी की, हर रेस की। तो ब्लैक्स भी होंगी उनमें, वाइट भी होंगी, ब्राउन भी होंगी, सेंट्रल एशियन भी होंगी, रशियन भी होंगी, जापानीज़ भी होंगी, सब होंगी। तो उसमें उनकी जो सेवा सुरक्षा के लिए, उनकी इलाज के लिए एक सर्टिफाइड सर्जन की ज़रूरत थी, सर्टिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो हकीम को जो मनूची साहब को जो है वो नियुक्त किया गया कि आप देखेंगे। तो उन्होंने अब किताब में लिखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं वहाँ पे इनको देखते ही जो है पीछे पड़ जाती थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे यहाँ से निकाल लो। कि मुग़ल दरबार में स्पेशली अकबर और जहांगीर में क्रिश्चियनिटी का बड़ा बोलबाला था।
तो ये उसी से जो है ये एक बिल्डिंग बनी है। ये एक्चुअली आगरा में आई थिंक एक अंग्रेज़ की है, उसने ताजमहल का रेप्लिका बनवाया था, अभी भी है वो, आगरा में ही है ताजमहल का रेप्लिका, उसको शायद ब्लैक ताजमहल बोलते हैं, ब्लैक स्टोन से बनवाया था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद। वो बीबी का मकबरा वो अलग है, आगरा में भी एक है, तो उसमें जो है उसकी मीनारों के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेज़ का एक मकबरा था वो। तो वो मनुची को जो है वो हरम का एक्सेस मिल गया, तो किसी भी पुरुष को मिलता नहीं था, तो इनको मिला। तो इन्होंने हरम में जो है क्या क्या होता था वो उसके बारे में बड़े डिटेल में लिखा हुआ है इन्होंने, और कैसे जो है उनकी महिलाओं का जीवन होता है वहाँ पे। तो शाह आलम ने क्यों दिया था, तो क्योंकि शाह आलम ने, लास्ट के जो कोट है वो शाह आलम का है, द माइंड्स ऑफ द क्रिश्चियंस वर नॉट फिल्दी लाइक दोज ऑफ द मोहम्मडन्स। तो ये शाह आलम का कोट है ये। तो इसलिए इनको मनुची को जो है वो एक्सेस दिया गया था। तो ये जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, तो अकबर और स्पेशली जहांगीर क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़े उत्सुक रहते थे। अब उस समय क्या था कि मुग़ल अम्पायर जो है पीक पे था उस समय, स्पेशली जहांगीर के टाइम पे वेल इस्टेब्लिश थे वो लोग, बिल्कुल पॉलिटिकली स्टेबल थे, कोई उनका जो है दुश्मन नहीं था उस समय। तो अब क्या करें अभी, तो इन लोगों के पास यही सब काम होते थे कि या तो हरम में बिता लो या फिर इस तरीके की चीज़ें जो हैं करो, क्रिश्चियनिटी में अपना इंटरेस्ट दिखाओ, या जैसे दारा शिकोह ने हिंदुओं में अपना, हिंदुइज्म में अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो ये डिफरेंट चीज़ें वो करते रहते थे। इस्लाम में पेंटिंग्स आप किसी भी बंदे की, पुरुष की, महिला की बना नहीं सकते हो, तो उसको सबवर्ट करने के लिए अब क्या है कि उनकी जो महल था सिर्फ खाली दीवारें थीं, तो बड़ी अजीब सी लगती थीं, इतने बड़े बड़े झूमर टंगे हुए हैं और दीवारें बिल्कुल खाली हैं। तो उन्होंने जो है फिर जहांगीर और अकबर ने बड़ी सारे क्रिश्चियन पोर्ट्रेट्स जो हैं वो कमीशन किए उन्होंने, और बना के अपनी दरवाज़ों पे टांगे, उन्होंने दीवारों पे टांगे। फिर जो गोवा से में पोर्तुगीज़ का राज था, तो वो लोग भी, उनको कुछ चाहिए होता था सूरत से या डाउन साउथ में, तो कुछ उनको कंसेशन चाहिए, तो वो गिफ्ट ला के देते थे। तो जब उनको लगा कि अकबर और जहांगीर जो है वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लाके उनको जो है भेंट करते थे ये लोग ये। तो इसलिए पूरा जो है वो एक ट्रैवलर ने बोला भी था, मनुची ने नहीं, कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कि हम वेटिकन के किसी चर्च में आ गए हों। मुगल दरबार उस समय ऐसा था। हालांकि जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगज़ेब बड़े कट्टर थे, तो उन्होंने वो सब निकलवा के जो है वो बेचबाज दी है उसको। तो ये थी मनुची की स्टोरी ये। तो इस तरीके से उन्होंने, जो मनुची ने जो है अपनी किताब लिखी है स्टोरी दी मोगर, तो उसमें जो है उन्होंने बड़ा डिटेल में जो है उसका वर्णन किया हुआ है, और आप उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने 2 बुक और भी लिखी हुई हैं मनुची ने, एक उसका नाम रेड बुक है, एक ब्लैक बुक है। तो उसमें जो भी हिंदू मंदिर थे उसका उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर इलस्ट्रेशंस बनवाए हुए हैं, तो वो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी किताबें जो हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी हैं ये, तो archive.org में फ्री में अवेलेबल हैं ये, तो आप इनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं इनको। अभी हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, विलियम हॉकिंस के बारे में। ये जो थे ये इन द ट्रू सेंस ये ट्रैवलर नहीं थे, ये टूर पे आए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे ये, और इनको भेजा गया था कि आप जो है फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन लो जहांगीर से। तो ये सूरत में आई है, सूरत में आके जो है इनको सबसे इनका बड़ा तगड़ा स्वागत हुआ। स्वागत इन द सेंस क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ ने इनको बड़ा मारा। जब इनको पता लगा कि ब्रिटिश आए हुए हैं, उस समय कॉलोनी थी पोर्तुगीज़ की, तो सूरत हालांकि उस समय मुग़ल था, लेकिन पोर्तुगीज़ भी अपना दबदबा रखते थे। तो जैसे ही पता लगा कि ब्रिटिश का शिप आया हुआ है, तो उनका जो शिप जो है, उनको लगा कि ये थ्रेट है, ये जो ब्रिटिश आएंगे। और यूरोप में भी जो है ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ की उस समय बड़ी राइवलरी रहती थी। तो एक बार ब्रिटिश ने जो है वो आई थिंक 40-50 साल पहले इनका एक बड़ा शिप जो है वो पोर्तुगीज़ का उठा के वो लंदन ले गए थे, जिसमें पूरे सोने जवाहरात भरे हुए थे। तो पोर्तुगीज़ को बड़ा गुस्सा था कि हमारा इतना बड़ा शिप जो है वो लूट लिया अंग्रेज़ों ने। तो कह रहे वो उनको बड़ा मारा पीटा, और सारा सामान जो है वो भी लूट लिया। तो ये जहांगीर के लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो बेसिकली अकबर के लिए लेके आए थे। उनको लगता था कि उस समय अकबर राज कर रहा है। तो जो जेम्स थे उस समय इंग्लैंड के किंग, तो वो लेटर जो लेके आए, तो वो जेम्स जो एड्रेस था वो अकबर को एड्रेस था, लेकिन उस समय वो चेंज हो चुके थे, तो जहांगीर बन चुके थे। तो खैर उनके गिफ्ट जो है वो सब छीन लिए पोर्तुगीज़ ने, और उनको जो है वो खाली हाथ उनको आगरा आना पड़ गया उनको।
तो उनको जो है फिर ऐसी शर्म के मारे ये दरबार में गई नहीं। तो दरबार में जब गई नहीं तो फिर लेकिन पता लग गया 10-15 दिन बाद कि एक जो है वो अंग्रेज आया हुआ है और आगरा में रह रहा है और किसी से मिल नहीं रहा है। तो जहांगीर ने बुलवाया उनको कि भाई ऐसा क्या क्या खता हो गई हमसे, तुम क्यों नहीं मिल रहे हो, आके दरबार में अगले दिन आके मिलो। तो ये गए तो उन्होंने बताया कहानी उन्होंने कि भाई मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया था लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन अभी एक और शिप आ रहा है तो मैं उसमें बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं, मैं वो आपको ला के दूंगा मैं। तो जहांगीर ने बोला अच्छा अच्छे गिफ्ट हैं तो ठीक है तुम जो है मेरे दरबार में रह जाओ। तो इनकी तो हॉकिंस की दोस्ती डायरेक्टली जहांगीर से हो गई और ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती हुई कि ये बोला जाने लगा कि 24 में से 18 घंटे जो है दोनों साथ में बिताते हैं। तो लोगों ने इनको ब्रांड करना शुरू कर दिया कि ये गे हैं ये। तो ये हुआ कि जो 8 घंटे हरम में बिताते हैं उसको छोड़ के ये 16 घंटे साथ में रहते थे। शाम को साथ में जो है वो जो दारू का सेवन करना, उसके साथ खाना पीना सब कुछ साथ में होता था। और ये जो है बताता रहता था कि इंग्लैंड में ये चल रहा है, इंग्लैंड में वो चल रहा है। तो वो उसको बड़ा जहांगीर को शौक था ये सब सुनने का। तो तरह तरह की कहानियाँ जो हैं वो एक्सेजरेट करके या बना के भी ये हॉकिंस साहब उनको जो है वो सुनाते रहते थे जहांगीर को। तो दोस्ती इतनी बढ़ गई तो इनका नाम पड़ गया इंग्लिश खान हॉकिंस को। तो ये भी मुगलिये कपड़े पहनने लग गए, इन्होंने भी पर्शियन सीखनी शुरू कर दी इन्होंने। तो टूटी फूटी पर्शियन में ये बात करते थे उससे। तो दोस्ती बढ़ती गई है और ये लेकिन जो है समहाउ जहांगीर जो है वो इनको परमिशन नहीं दे रहा था फैक्ट्री खोलने की। उसको वो तो बोल दिया कि ट्रेडिंग कर लो तुम, लेकिन फैक्ट्री की परमिशन जो है वो नहीं दे रहा था। उसका कारण ये था कि पोर्तुगीज़ जो हैं और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आते थे और इनके गिफ्ट आ नहीं रहे थे। तो पशुपेश में था। तो फिर यही लगता था कि जहांगीर को कि अब की जो है इसको अधर में लटका के रखो इसको, कि जब तक अच्छे गिफ्ट नहीं आएंगे गिफ्ट देख के ही मैं जो है इसको परमिशन दूंगा मैं ये। और गिफ्ट आ नहीं रहे थे। जो दूसरा शिप आया तो उसमें भी जो है वो गिफ्ट बड़े अच्छे नहीं थे, क्योंकि जब उस समय तक पता लग गया था उसको अंदर बाहर मुगल दरबार का, तो उसने देखा ये तो बड़ा वैभवशाली है, इंग्लैंड में तो कुछ भी नहीं है। खैर तो जो है वो परमिशन मिल नहीं रही थी और ये जो है लेकिन उसको हिलगा के रखना चाहते थे। अभी मुगलों में जैसे महिलाओं के लिए था वैसे ही पुरुषों के लिए भी था। उनके दरबार में जो है हर तरीके के लोग होने चाहिए, हर रेस के, हर कंट्री के। तो क्योंकि हॉकिंस उनको पसंद आ गया था तो वो चाहते थे कि हॉकिंस जो है उनके पूरे टाइम में उनके साथ में रहे वो। तो उसको जो है 400 घोड़े भी दिए और उसको जो है 1600 रुपये की तनख्वाह दी हॉकिंस ने। हॉकिंस फिर भी बोर होने लग गया 2-3 महीने बाद, क्योंकि वो तो टूर पे था वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बाद में बोलेंगे तुमने बड़ा टाइम जो है वेस्ट कर दिया हमारा, प्लस तुम टिकट ये भी ले रहे हो, तुम ये सब क्या चल रहा है ये। तो वो जो है वो बार बार जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन रिमाइंड करता रहता था कि आप जो है वो जो है मुझे परमिशन दो। तो जब जहांगीर को लगा कि ये ज़्यादा उतावला हो रहा है तो उसने बोला कि एक दिन उसको हरम दिखाने ले गया कि देखो ये 2000 महिलाएं हैं, इसमें से तुम किसी को भी चूज़ कर लो और तुम शादी कर लो उससे और इंडिया में ही रहो तुम, यार कहाँ जाओगे, इंग्लैंड में तो बेकार है, तुम मेरे दरबार में ही रहो तुम, तो जो भी तुम्हें महिला है वो चूज़ कर लो। तो हॉकिंस ने बोला मैं मुस्लिम से शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो क्रिश्चियन से ही करूँगा। तो जहांगीर को याद आया कि आर्मेनिया की जो सेंट्रल एशिया में है वहाँ पे वो क्रिश्चियन कंट्री था उस समय, अभी भी क्रिश्चियन कंट्री आई थिंक वो। तो इसमें की एक मरियम करके एक लड़की है, बड़ी सुंदर सी है और वो वाइटिश भी है वो, तुम उससे शादी कर लो। तो मिलवाया उसको, तो हॉकिंस को पसंद भी आ गई वो और दोनों में बाकायदा शादी भी हो गई उनकी। तो फिर 1 आध महीने वो शांत रहे हॉकिंस साहब। फिर 1 महीने बाद उनको ध्यान में आया, तो उनके साथ ऐसा नहीं था कि हॉकिंस अकेले थे, उनके साथ 2-3 लोग और भी इंग्लैंड से आए थे। तो वो पोक करते रहते थे कि भाई तुम बात तो कर ही नहीं रहे हो, तो वो रिमाइंड करते रहते थे। और उधर पोर्तुगीज़ बड़े बदमाश थे, तो वो बार बार जब भी उनको लगे कि ये बोलने वाला है तो एक और अच्छे गिफ्ट ला के देते हैं जहांगीर को। तो जहांगीर जो है वो बड़ा उसमें रहा कि उसको जो है इसी तरीके से उसको जो है वो बांध के रखो हॉकिंस को। बट अब समय बीतता जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि जो गिफ्ट जब दूसरा शिप आया तो वहाँ पे जो सूरत में जो इंस्पेक्टर था, जो कस्टम ऑफिसर था, उसने जो है एक गिफ्ट उसको पसंद आया तो उसने गिफ्ट जो है वो रख लिया उसने कि ये एज ए ब्राइब कि ये गिफ्ट मेरा ही है, जबकि वो गिफ्ट जो है वो जहांगीर का था।
तो जब इनको हॉकिंस को पता लगा तो उन्होंने जहांगीर को बोला कि मैं आपके लिए सर गिफ्ट लेके आया था और आपके इस बंदे ने देखो जो है वो गिफ्ट मुझसे छीन लिया। तो जब वो पता लगा उस बंदे को, जो कस्टम ऑफिसर को, तो उसने कुछ पैसे उसको दे दिए। मतलब अगर 100 रुपये का गिफ्ट रहा होगा तो उसने 20-25 रुपये उसको दे दिए। अब कस्टम ऑफिसर था, उसकी भी अपनी इज्जत थी, 100 रुपये दे देगा तो क्या मतलब है। तो अब 20-25 रुपये दे दिए तो उसने जो है हॉकिंस साहब से रहा नहीं गया। तो उन्होंने जहांगीर को बोला कि भाई ये 20-25 रुपये बड़े कम है, ये आपके बंदे ने जो है मुझे चीटिंग करी है, ये मुझे 75 रुपये और चाहिए। इस समय जो है वो जहांगीर को गुस्सा आ गया। उनने बोला कि यार ये क्या है, ये इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम जो है 1600 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम जो है इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास आ जाते हो। तो वहाँ से रिश्तों में जो है वो दरार पड़नी शुरू हो गई। और फिर जो लास्ट में जो है जिसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो क्या हुआ कि जहांगीर की माता श्री जो थी वो हज करने मक्का जा रही थी। तो ये क्या होता था कि वो भी जो है हज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है इंडिगो जो नील होता है उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी अरब में। तो आगरा के पास ही एक बयाना जगह है 50-60 किलोमीटर दूर, अभी राजस्थान में है वो। तो वो बयाना जो है मार्केट था इंडिगो का। तो इंडिगो का मार्केट था, तो वो ख़रीदने गई वो कि वहाँ पे मैं कुछ गिफ्ट कर दूंगी और कुछ सेल कर दूंगी, तो आने जाने का खर्चा जो है वो निकल जाएगा। जहांगीर जैसे मुग़ल एम्परर की माताजी थी, लेकिन उनको तब भी जो है वो लगा था कि आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। खैर वो बयाना पहुंची वो अपना पूरे पालकी वालकी के साथ में, और वो जहाँ पे मेन शॉपकीपर होगा उसके पास गई। अभी इधर क्या हुआ कि हॉकिंस भी जो परेशान हो रहा था, तो वो उसने जब दरार पड़नी शुरू हुई तो जहांगीर को बोला कि मुझे अब जाने दीजिए। अच्छा, इसके बीच में क्या हुआ था कि जहांगीर ने उनको डिमोट भी कर दिया इसके बाद। तो हाँ, तो पहले जो है कैटेगरी के हिसाब से उनको आसन मिलता था, पहले बड़ा प्रोमिनेंट प्लेस पे मिलता था, फिर बाद में उनको कॉर्नर पे कर दिया है कि तुम यार कोने में जाके बैठो। तो फिर इससे परेशान होके हॉकिंस ने बोला कि जो है आप मुझे वापस जाने दीजिए। तो इसी बीच जो है हॉकिंस का जो सबऑर्डिनेट था वो भी बयाना पहुंचा उसी दिन कि अब तो वापस जाना है, तो चलो हम भी इंडिगो खरीद लेते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तो वो दोनों एक ही दिन पहुंचे। तो जब वो खरीद रही थी वो उनकी राजमाता, तो इन्होंने जो है सबऑर्डिनेट ने हॉकिंस के डबल दामों पे जो है वो खरीद लिया सारा का सारा। अब वो तो पालकी में बैठी हुई थी, तो वो उसको पता नहीं था कि ये हैं राजमाता। तो वो खरीद के जो है घोड़े पे बैठ के और जितना भी होगा वो ऊँट पे लाद के वो निकल गया वो। तो जब राजमाता को पालकी के अंदर पता लगा कि ऐसा कोई गोरा आया था और वो सब लेके चला गया, तो वो बड़ा गुस्सा हुई। तो उन्होंने जहांगीर को कंप्लेंट करी कि भाई ये तुम्हारा बंदा जो दरबार में बैठा हुआ था, उसी का जो बाशिंदा सब खरीद के ले गया, मेरा इतना अपमान कर दिया। तब जहांगीर को बिल्कुल आग से जो है वो आग बबूला हो गए वो। तो जहांगीर ने बोला कि अब आप जो है अब आप रुखसत करिए यहाँ से। तो वो अपनी वाइफ को लेके जो है वो गोवा पहुँच गए, और इस तरीके से जो है वो उनका जो है वो वहाँ पे जो है वो जर्नी ख़त्म हुई। तो वो बड़े अनसक्सेसफुल रहे हॉकिंस उसमें, कि स्पेशली जो है वो ट्रेडिंग का राइट्स उनको मिल गया था, लेकिन फैक्ट्री लगाने का जो है उनको जो परमिशन अल्टीमेटली उनको नहीं मिली। ये 1608 में आए थे, और आई थिंक 1615 में दोबारा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने थॉमस रो को भेजा जहांगीर के दरबार में ही। तो इस बार जो है उनके पास प्योर इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके की गिफ्ट पसंद हैं, उनके दरबार में क्या क्या है। तो उसके बाद जो है वो थॉमस रो पूरा प्रिपेयर्ड होके आया, और उसने एक दिन में ही जो है वो उसकी जो है परमिशन फैक्ट्री लगाने की ले ली। तो वो दिन था 1615 का, और उसके बाद जो है वो 1757, 150 सालों में जो है वो बिल्कुल तख्ता पलट हो गया। उसके बाद जो है वो लोग राज करने लग गए, जो कि ये आपको ये पेंटिंग दिखा रही है। पहले जहांगीर जो है वो के दरबार में जहांगीर बैठा रहता था और थॉमस रो खड़े होते थे, और अभी यहाँ पे उनका अंग्रेज़ों का दरबार लगना शुरू हो गया था। तो एक स्टैटिस्टिक्स है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कभी भी 5000 ऑफिसर्स और 50,000 सोल्जर से ज़्यादा इंडिया में कभी नहीं रहे। उन लोगों ने 200 साल तक 10 करोड़ हिंदुस्तानियों पे राज किया। 55,000 लोगों ने 10 करोड़ लोगों पे। इन 200-250 सालों में वो 45 ट्रिलियन डॉलर की जो है वेल्थ हमसे लूट के लेके गए। जो ये इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, तो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, सारी हमारी इंडस्ट्री जो है उन्होंने बर्बाद कर दी। कोहिनूर ले गए, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी सब उठा के वो ले गए।
तो इस तरीके से जो जो क्वांटिफाई किया गया अभी वो 45 ट्रिलियन डॉलर की, ये आज की वैल्यू पे है ये, ठीक है। और इस बीच में 10 करोड़ इंडियंस को लगभग मारा, नहीं सॉरी 10 लाख इंडियंस को मारा गया। ये गलत है, ये 10 करोड़ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये थी हम ट्रैवलर्स की स्टोरी। तो इसमें बस 2-3 चीज़ जो बाइसेस थे सभी ट्रैवलर्स के मन में, वो मैंने इस पे बात भी करी है कि सबके अंदर जो है एक कल्चरल सुपीरियरिटी थी, एक वाइट होने का सबको गुरूर था, और सबको जो था तब तक कॉलोनी भी बन गई थी, तो उनको ये था कि अभी हम इन पे राज करने वाले हैं या राज कर रहे हैं। तो ये सब बाइसेस थे। तो अगर आप इनको दरकिनार करते हैं इन बाइसेस को, तो इनकी हिस्ट्री को आप इंजॉय कर सकते हैं, इनसे बहुत कुछ जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन।